آج ہم سائنس کی تاریخ کی ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں انقلابی کتاب پر بات کر رہے ہیں. جی، چارلز ڈارون کی آن دی اوریجن آف اسپیشیز. بالکل. اور خاص طور پر آج ہم اس کے تعارف یعنی انٹروڈکشن اور پہلے باب کا ذرا گہرائی میں جائزہ لیں گے. ٹھیک ہے. یہ وہ بنیاد ہے جہاں سے ڈارون اپنی ساری دلیل شروع کرتے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ سیدھا نتیجے پر نہیں آتے. ہاں، یہ بہت اہم نقطہ ہے. انہوں نے شروعات کی اپنے مشاہدات سے، وہ جو ان کا مشہور سفر تھا HMS بیگل پر. جی، جنوبی امریکہ والا. وہیں سے جو کچھ وہاں دیکھا، خاص کر جانداروں کی جغرافیائی تقسیم اور ماضی اور حال کے نمونے، اس نے انہیں مجبور کیا کہ وہ سوچیں کہ یہ انواع بدلتی کیسے ہیں. اور یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں تھی، سالوں لگے. 1837 سے انہوں نے شواہد جمع کرنا شروع کیے. اچھا. پھر 1844 تک ایک خاکہ، ایک سکیچ بھی بنا لیا تھا، لیکن اسے شائع کرنے میں کافی وقت لگا. اور پھر شائع بھی کیا تو ایک ایبسٹریکٹ یعنی خلاصے کے طور پر. اس کی کیا وجہ تھی؟ 2 بڑی وجوہات تھیں. ایک تو ان کی اپنی صحت کچھ ناساز رہتی تھی، اور دوسرا یہ کہ الفریڈ رسل ویلس نامی ایک اور سائنسدان، وہ بھی آزادانہ طور پر انہی نتائج پر پہنچ رہے تھے. تو ایک طرح کی دوڑ لگ گئی کہہ سکتے ہیں. تو ڈارون نے فیصلہ کیا کہ اب مزید انتظار نہیں کرنا چاہیے اور کم از کم ایک خلاصہ شائع کر دینا چاہیے. اور اس خلاصے کی بنیاد کیا تھی؟ یہ اہم ہے. یہ صرف خیالات تو نہیں تھے. نہیں، بالکل نہیں. بنیاد تھی ٹھوس مشاہدات، تغیر یعنی ویریشن جو وہ دیکھ رہے تھے، اور منطق. اور انہوں نے شروع میں ہی یہ بھی مانا کہ ان کی تحقیق میں کچھ کمیاں ہو سکتی ہیں، کچھ سوالات اٹھ سکتے ہیں. یہ ایک اچھے سائنسدان کی نشانی ہے. جی، ان کا بنیادی موقف وہ بالکل واضح ہے. انواع ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی، وہ جامد نہیں ہیں، بلکہ وقت کے ساتھ قدرتی عوامل کے ذریعے بتدریج تبدیل ہوتی ہیں، ارتقا پذیر ہوتی ہیں. تو بنیادی سوال یہ بنا کہ آخر یہ تبدیلی آتی کیسے ہے؟ جاندار اپنے ماحول سے مطابقت کیسے پیدا کرتے ہیں؟ ہاں، کیونکہ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں تھا کہ ماحول اثر انداز ہوتا ہے، مطلب خوراک یا موسم. یا اس وقت کی کچھ اور تھیوریز تھیں جیسے ویسٹیجز آف کریشن میں. بالکل. ڈارون نے کہا کہ ان چیزوں سے وہ پیچیدہ موافقتیں، وہ کمپلیکس ایڈیپٹیشن سمجھ نہیں آتی جو ہم دیکھتے ہیں. جیسے وہ مثال دیتے ہیں کٹ پھوڑے کی زبان کی ساخت، یا مسلٹو پودا کیسے دوسرے درخت پر اگتا ہے. جی، تو انہوں نے سوچا کہ اس غیر واضح مسئلے کو سمجھنے کا سب سے محفوظ، سب سے بہترین طریقہ کیا ہے. اور وہ کیا تھا؟ وہیں سے شروع کیا جائے جو ہمارے سامنے ہے، جسے ہم خود کرتے ہیں، یعنی پالتو جانوروں اور کاشت شدہ پودوں میں جو تغیر پایا جاتا ہے اس کا مطالعہ. ویریشن انڈر ڈومیسٹیکیشن، یہ ان کے پہلے باب کا عنوان ہے. اچھا، تو جو چیزیں انسانوں نے پالی یا اگائی ہیں ان سے شروع کیا. یہ تو بڑی دلچسپ اپروچ ہے. تو باب اول میں کیا خاص باتیں؟ پہلی چیز جو وہ نوٹ کرتے ہیں وہ یہ کہ پالتو انواع میں ان کے جنگلی آباء و اجداد کے مقابلے میں کئی زیادہ فرق، زیادہ ویریشن نظر آتا ہے. ایسا کیوں؟ وہ قیاس کرتے ہیں کہ شاید اس لیے کہ ان کے حالات زندگی اتنے یکساں نہیں رہتے جتنے جنگل میں ہوتے ہیں، اور خوراک بھی عموماً زیادہ ملتی ہے. ٹھیک. اور یہ تبدیلیاں وراثتی ہوتی ہیں، مطلب اگلی نسل میں جاتی ہیں. جی، وراثت کا تصور کلیدی ہے. لائک پروڈیوسز لائک، یعنی اولاد میں والدین کی خصوصیات آتی ہیں. یہ تو سب جانتے تھے. اگرچہ اس وقت جینز وغیرہ کا تو علم نہیں تھا. بالکل نہیں. وراثت کے قانون تو نامعلوم تھے، لیکن یہ مشاہدہ تھا کہ خصوصیات منتقل ہوتی ہیں. کبھی کبھی تو دادا پردادا کی کوئی خصوصیت بھی اچانک ظاہر ہو جاتی تھی. تو یہیں سے وہ مصنوعی انتخاب یعنی آرٹیفیشل سلیکشن کا تصور لاتے ہیں کہ انسان کیسے چن چن کر نسلیں بدل دیتا ہے. بالکل. انسان کی طاقت، مینز پاور آف ایکیومولیٹو سلیکشن، وہ نسل در نسل اپنی پسند کی چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کو جمع کرتا جاتا ہے. مثال کے طور پر کتے. ہاں، کتوں کی مثال دیکھیں. گرے ہاؤنڈ، بلڈ ہاؤنڈ، بل ڈاگ، ان میں کتنا زیادہ فرق ہے. ڈارون نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ کیا یہ سب ایک ہی جنگلی نسل سے ہیں یا کئی سے؟ وہ کیا سمجھتے تھے؟ کتوں کے معاملے میں وہ سمجھتے تھے کہ شاید کئی جنگلی انواع شامل ہیں، لیکن ان کا اصل نقطہ یہ تھا کہ انسانی عمل سے ان میں تغیر کتنا زیادہ پیدا ہو گیا ہے. اور کبوتروں کی مثال تو شاید اس سے بھی زیادہ کمال کی ہے. بلا شک وہ کبوتروں کے بہت شوقین بھی تھے.
इंग्लिश कैरियर, फैनटेल, पाउटर, टम्बलर, इतनी किस्में, और सिर्फ बाहर से नहीं, उनकी हड्डियों, खोपड़ी, चोंच, परों की तादाद, अंदरूनी आज़ा तक में फर्क है। यकीन करना मुश्किल है कि ये सब एक ही नस्ल से निकले हैं। जी, और डार्विन ने बड़े मजबूत दलाइल दिए कि ये सब जंगली रॉक कबूतर, कलम्बा लीविया, उसी की नस्ल से हैं। क्या दलाइल थे? कई थे। एक तो ये कि इतनी सारी अलग अलग जंगली नस्लें पालना ये मुमकिन नहीं लगता। फिर वो मुबैना जंगली नस्लें कहीं मिलती भी नहीं। सही। फिर उन पालतू नस्लों में ऐसी खसूसियात हैं जो किसी और जंगली कबूतर में नहीं है। और एक बहुत अहम बात, जब आप मुख्तलिफ पालतू नस्लों को आपस में मिलाप कराते हैं तो क्या होता है? तो अक्सर उनकी औलाद में कुछ नस्लों बाद असल जंगली रॉक कबूतर का रंग और निशानात वापस आ जाते हैं। इसे रिवर्जन कहते हैं। ओह, ये तो बड़ा सबूत है। और सबसे अहम शायद ये कि ये तमाम मुख्तलिफ नस्लें आपस में बच्चे पैदा कर सकती हैं, और वो बच्चे भी आगे नस्ल बढ़ाने के काबिल होते हैं, यानी फर्टाइल होते हैं। तो कबूतर वाकई एक केस स्टडी बन गए डार्विन के लिए। जी हाँ, ये दिखाने के लिए कि एक ही नौ में तब्दीली की कितनी ज्यादा सलाहियत छुपी होती है, जिसे इंतखाब के जरिए उभारा जा सकता है। पौधों में भी ऐसा ही है? बिल्कुल। बंद गोभी की एक किस्म हम पत्तों के लिए उगाते हैं, दूसरी फूल के लिए, यानी फूल गोभी। या पेंसी के फूल देखें, कितने रंग और डिजाइन, मगर पत्ते तकरीबन एक जैसे। डार्विन ने इंतखाब की भी किस्में बताई थी, बाकायदा और गैर शौरी। जी, मेथोडिकल और अनकॉन्शियस। बाकायदा इंतखाब वो है जब कोई ब्रीडर एक खास मकसद सामने रखकर जानवर चुनता है, मसलन ज्यादा ऊन देने वाली भेड़। और गैर शूरी? वो बस ये है कि हर शख्स कोशिश करता है कि अपने सबसे अच्छे जानवर या पौधे रखें और उन्हीं से नस्ल आगे बढ़ाए। इसका कोई वाज़े मंसूबा नहीं होता, लेकिन सदियों में इससे भी धीरे धीरे नस्लें बदल जाती हैं। जैसे वो किंग चार्ल्स स्पेनियल कुत्ते की मिसाल देते हैं। बिल्कुल। या लेस्टर भेड़ की दो मुख्तलिफ किस्म जो एक ही असल स्टॉक से मुख्तलिफ लोगों के इंतखाब से बन गईं। और क्या कोई खास हालात हैं जो इस इंतखाब के अमल को ज्यादा मौसर बनाते हैं? हाँ, कुछ चीजें मददगार होती हैं। जैसे अगर आपके पास जानवरों या पौधों की बड़ी तादाद हो तो अच्छे तगैयर मिलने का इम्कान ज्यादा होता है। मंतकी बात है। फिर इंसान की तवज्जो कितनी है, वो जानवर या पौधा कितना मुफीद या कीमती है, और ये कि आप नापसंदीदा मिलाप को रोक सकते हैं या नहीं, जैसे बाड़ लगाकर खेतों को अलग रखना या कबूतरों के जोड़े अपनी मर्जी से बनाना। और जिन अनवा में ये चीजें कम हैं, उनमें नस्लें भी कम हैं। हाँ, जैसे बिल्ली, गधा या मोर, इनमें इतनी ज्यादा नस्लें नहीं मिलती, शायद इसलिए कि इनमें इंतखाब का अमल इतना मौसर नहीं रहा। तो अगर हम इस सारी बहस का खुलासा करें जो तारुफ और पहले बाब में है, तो डार्विन ने अपनी बात शुरू की जानी पहचानी चीजों से, पालतू जानवर, पौधे, और दिखाया कि उनमें तब्दीली की कितनी गुंजाइश है। ये तब्दीलियां विरासती हैं और इंसान का इंतखाब यानी मसनूई इंतखाब इन तब्दीलियों को किस तरह बढ़ावा देता है और नई शक्लें देता है। बिल्कुल। ये सब दरअसल एक तमहीद थी, तैयारी थी कुदरती अमल को समझने की। इन मिसालों से उन्होंने ये साबित किया कि अनवा बदल सकती हैं, ये कोई पत्थर पर लिखी हुई चीज नहीं है। और इस तरह उन्होंने सदियों से चले आ रहे जामिद तस्वुरात को चैलेंज किया। ये सिर्फ जानवरों पौधों की बात नहीं, ये एक साइंसी सोच का तरीका है। जी, मुशाहदा करें, सबूत देखें, फिर नतीजा निकालें। और यहाँ से अब वो अगला कदम उठाएंगे कि अगर इंसान ऐसा कर सकता है तो क्या फितरत में भी कोई ऐसा ही या उससे भी ज्यादा ताकतवर इंतखाबी अमल काम कर रहा है? यही वो सवाल है जो हमें उनके अगले बड़े तसव्वुरात की तरफ ले जाएगा। बका की जिद्दोजहद, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और कुदरती इंतखाब, नेचुरल सिलेक्शन। तो ये इब्तदाई मुशाहिदात जो बज़ाहिर आम से लगते हैं, असल में एक बहुत बड़े हयातियाती इनकलाब की बुनियाद बन गए। बिल्कुल, और यहीं से हयातियात हमेशा के लिए बदल गईं। लर्न विद हमजा याकूब यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज हम चार्ल्स डार्विन की किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के सफर को आगे बढ़ा रहे हैं और बात करेंगे चैप्टर 2 वेरिएशन अंडर नेचर, यानी फितरत के तहत तगीर की। जी, पिछले बाब में हमने देखा था कि पालतू जानवरों में इंसान की वजह से कैसे तब्दीलियां आती हैं। बिल्कुल। अब डार्विन अपनी तवज्जो कुदरती दुनिया यानी जंगली पौधों और जानवरों की तरफ मोड़ते हैं और सवाल ये उठाते हैं कि अगर इंसान की चुनी हुई अफजाइश नस्ल तब्दीली ला सकती है
तो फितरत में जहां सिर्फ कुदरती अवामिल काम कर रहे हैं, वहां ये तगीर, ये वेरिएशन कैसे पैदा होता है? यही इस बाब का मरकजी नुक्ता है। इसमें हम देखेंगे कि स्पीशीज यानी नौ की कोई वाज़ेह पक्की तारीफ करना कितना मुश्किल काम है, खास तौर पर माहिरीन फितरत के लिए। अच्छा। और कैसे ये जो स्पीशीज और वेराइटीज हैं, यानी अनवा और अकसाम, इनके दरमियान की लकीर अक्सर धुंधली सी होती है। और ये भी कि ये कुदरती तगय्युर बगैर किसी इंसानी मुदाखलत के कैसे होता है, और इससे जो रिवायती दर्जाबंदी का निज़ाम था, टेक्सोनोमी, उसको क्या चैलेंजेस दरपेश आए? बिल्कुल। और डार्विन यहाँ ये बड़ा दिलचस्प ख्याल पेश करते हैं कि वैरायटीज कोई बेकायदगी नहीं है, बल्कि फितरत के तजुर्बात हैं, तब्दीली के इशारे हैं। तो आइए इसी पर बात करते हैं। सबसे पहले तो ये स्पीशीज और वैरायटी की तारीफ का मसला। डार्विन बताते हैं कि माहिरीन के लिए भी ये वाज़ेह करना मुश्किल था। जी, क्योंकि अक्सर लोग स्पीशीज को किसी खास तख्लीकी अमल से जोड़ते थे, जैसे हर स्पीशी अलग से बनाई गई हो, जबकि वैरायटी में ये तसव्वुर था कि उनका आपस में कोई मुश्तरका निस्बी ताल्लुक है। इसमें मॉन्स्ट्रोसिटीज का भी जिक्र है, यानी वो जानदार जो बिल्कुल ही अजीब लगते थे, वो भी कभी कभी वैरायटीज में शामिल हो जाते थे। लेकिन डार्विन ज्यादा जोर इनफरादी इख्तिलाफात पर देते हैं ना, वो छोटे छोटे फर्क। बिल्कुल, असल में वही बुनियादें, यही वो छोटे फर्क हैं जिन पर कुदरती इंतखाब यानी नेचुरल सिलेक्शन अमल करता है। और दिलचस्प बात ये कि डार्विन कहते हैं ये फर्क सिर्फ बाहरी शक्लो सूरत में नहीं होते। अच्छा, यानी अंदरूनी आज़ा में भी? जी हाँ, अहम आज़ा में भी तगय्युर पाया जाता है। वो मिस्टर लब्बक की एक तहकीक का हवाला देते हैं कॉकस कीड़ों पर, जिनके आसाब तक में फर्क पाया गया। ये बात उस वक्त के माहिरीन के लिए काफी हैरानकुन रही होगी। और फिर वो प्रोटीन या पॉलीमॉर्फिक जिन्सा जेनरा की बात करते हैं, जैसे रूबस यानी ब्लैकबेरी या रोजा यानी गुलाब की जिन्स। हाँ, उनमें इतनी ज्यादा वैरायटीज होती हैं, इतनी किस्में होती हैं कि माहिरीन के लिए तय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी अलग स्पीशीज है और कौन सी सिर्फ एक वैरायटी। तो यहीं से वो मशकूक स्पीशीज यानी डाउटफुल स्पीशीज का मसला सामने आता है। बिल्कुल, ऐसी किस्में जो लगती तो स्पीशीज जैसी हैं, लेकिन दूसरी किस्मों से इतनी मिलती जुलती हैं या उनके दरमियान में ऐसी शक्लें मौजूद हैं कि उनको अलग स्पीशीज कहना मुश्किल हो जाता है। तो फिर दर्जाबंदी कैसे होती थी? अंदाजे से? काफी हद तक माहिरीन की जाती राय और इत्तफाक राय पर मुनहसर थी। डार्विन बताते हैं कि माहिरीन अक्सर दरमियानी रवाबित की बुनियाद पर फैसला करते थे और कभी कभी तो सिर्फ कयास आराई पर। H.C. वॉटसन की मिसाल दी गई है। हाँ, वो 182 बरतानवी पौधों वाली मिसाल कि कुछ माहिरीन उन्हें स्पीशीज मानते थे, कुछ वैरायटीज। जी, इससे अंदाजा होता है कि ये मामला कितना गैर यकीनी था। और फिर जोग्राफियाई फासला भी एक किरदार अदा करता था। अच्छा, वो कैसे? दूर दराज इलाकों की मिलती जुलती किस्में, मसलन शुमाली अमेरिका और यूरोप की या गलापागोस जज़ायर की, उन्हें अक्सर अलग स्पीशीज समझ लिया जाता था, सिर्फ इसलिए कि वो अलग जगहों पर हैं। प्राइमरोज और काउस्लिप वाली मिसाल भी इसी से मुताल्लिक है। हाँ बिल्कुल, प्रिमुला वरिस और एलियाट्योर, इनमें जाहिरी फर्क भी है, रहने की जगहें भी अलग हैं, आपस में अफजाइश नस्ल भी मुश्किल से होती हैं, लेकिन इनके दरमियान जो शक्लें मिलती हैं और मुश्तरका नस्ल के जो शवाहिद हैं, वो बताते हैं कि शायद ये एक ही स्पीशीज की वैरायटीज हैं। तो ये जो पूरा सिलसिला नजर आता है, इनफरादी फर्क, फिर वैरायटी, फिर सब स्पीशीज और फिर शायद स्पीशीज, ये एक मुसलसल तब्दीली, एक इर्तिका का इशारा दे रहा है। जी, और यहीं पर डार्विन अपना वो इनकलाबी ख्याल पेश करते हैं कि वैरायटीज असल में इंसिपिएंट स्पीशीज है, यानी नई स्पीशीज बनने की इब्तदाई शक्लें। अच्छा, तो ये सफर कैसे तय होता है? डार्विन के मुताबिक ये सफर इनफरादी इख्तिलाफात से शुरू होता है। उनसे छोटी मामूली वैरायटीज बनती हैं, फिर ये वैरायटीज ज्यादा वाज़े, ज्यादा नुमाया होती जाती हैं, शायद सब स्पीशीज बन जाए, और आखिरकार कुछ वैरायटीज नई स्पीशीज बन सकती हैं। और इस तब्दीली के पीछे असल कुव्वत कुदरती इंतखाब की है? बिल्कुल, कुदरती इंतखाब मखसूस सिमतों में उन फर्कों को जमा करता रहता है, नस्ल बर नस्ल। इसीलिए डार्विन कहते हैं कि एक अच्छी तरह से वाज़े वैरायटी को बजा तौर पर एक इब्तिदाई स्पीशीज कहा जा सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर वैरायटी स्पीशीज बने।
नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सी वैरायटीज शायद मादूम हो जाएं या लंबे अरसे तक वैरायटी ही रहे। इसीलिए डार्विन कहते हैं कि स्पीशीज और वैरायटी ये इस्तिलाहात हम बस सहूलत के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये कोई सख्त कुदरती तकसीम नहीं है। आखिर में डार्विन तगय्युर के कुछ पैटर्न्स पर भी बात करते हैं। जी, वो डॉक्टर होकर और H.C. वॉटसन के काम का हवाला देते हुए बताते हैं कि जो स्पीशीज ज्यादा वसी इलाके में फैली हुई हैं, ज्यादा आम हैं यानी अपने माहौल में गालिब हैं, उनमें अक्सर ज्यादा नुमाया वैरायटीज पाई जाती हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? गालिबन इसलिए कि गालिब स्पीशीज के पास पहले से कुछ फायदे मौजूद होते हैं जो विरासत में मिलते हैं, तो उनकी औलाद में होने वाली छोटी तब्दीलियां भी उन्हें माहौल में कामयाब होने में मजीद मदद देती हैं। एक और दिलचस्प नुक्ता बड़ी जीनस के बारे में था। हाँ, कि जिन जेनस में पहले से ज्यादा स्पीशीज मौजूद हों, यानी बड़ी जेनस, उनकी स्पीशीज में छोटी जेनस की स्पीशीज के मुकाबले में ज्यादा वैरायटीज बनने का इम्कान होता है। वो मशहूर मिसाल जहां बड़े दरख्त उगते हैं। जी, जहां बहुत से बड़े दरख्त उगते हैं, हम वहां मजीद पौधों की तवक्को करते हैं। यानी जहां स्पीशीज बनने का अमल पहले से ज्यादा फाल रहा है, वहां इम्कान है कि वो अब भी जारी हो। और ये भी कि बड़े जीनस में स्पीशीज अक्सर एक दूसरे से ज्यादा मिलती जुलती होती हैं, जैसे वैरायटीज होती हैं। बिल्कुल, उनमें फर्क कम होता है और वो एक दूसरे से करीबी लेकिन गैर मुसावी ताल्लुक रखती हैं, बिल्कुल वैरायटीज की तरह। और अक्सर ये वैरायटीज और करीबी स्पीशीज महदूद जुग्राफियाई इलाकों में पाई जाती हैं। बहुत खूब। तो खुलासा ये कि चैप्टर 2 में डार्विन ने उस ख्याल की बुनियादें हिला दी कि फितरत में स्पीशीज बिल्कुल अलग थलग वाज़े अकाइयां हैं। जी, उन्होंने दिखाया कि जिसे हम स्पीशीज और वैरायटीज कहते हैं, वो शायद एक ही तसलसल का हिस्सा हैं। तगय्युर हर जगह है और यही तब्दीली की बुनियाद है। और ये साबित किया कि जिंदगी जामिद नहीं बल्कि मुतहर्रिक है, बदलती रहती है और इन कुदरती दबाव से तश्कील पाती है, जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बाब सिर्फ दर्जाबंदी के बारे में नहीं, बल्कि फितरत में तब्दीली लाने वाली पोशीदा कुव्वतों को समझने की दावत है। अगले बाब में हम देखेंगे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी बका की जुद्दोजहद को, और ये कि फितरत कैसे फैसला करती है कि कौन सी तब्दीलियां बाकी रहेंगी और कौन सी नहीं। यकीनन एक दिलचस्प मौजू होगा। अपने ख्यालात नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे साथ इस अहम किताब को बाब दर बाब समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। लर्न विद हमजा याकूब यूट्यूब चैनल पर सबको खुशामदीद। आज हम चार्ल्स डार्विन की मशहूर जमाना किताब असले अनवा यानी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के तीसरे बाब पर बात कर रहे हैं। बाब का उन्वान है बुका की जुदोजहद, द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जी, और ये एक बहुत ही अहम बाब है। बिल्कुल। पिछले अब्वाब में हमने देखा था कि पालतू जानवरों में और फितरत में तगय्युरात यानी वेरिएशंस कैसे पैदा होते हैं। हाँ, वो बुनियाद थी। अब डार्विन इस सवाल पर आते हैं कि ये जो तब्दीलियां आती हैं, ये कायम कैसे रहती हैं या फिर खत्म क्यों हो जाती हैं। सही, यानी अब मैकेनिज्म की बात हो रही है। बाब 3 में डार्विन वो तस्वर पेश करते हैं कि तमाम जानदार, पौधे हों या जानवर, वो जिंदा रहने के लिए एक मुसलसल, आप कह लें, कशमकश या मुकाबले में है। अच्छा, तो ये जुदोजहद या स्ट्रगल जो है, इससे डार्विन की मुराद क्या सिर्फ लड़ाई भड़ाई है, जैसे शिकारी और शिकार? नहीं, ये बहुत अहम नुक्ता है। डार्विन ने इस इस्तिलाह को बहुत वसी मानों में इस्तेमाल किया है। असल में इसमें खुराक की कमी से मुकाबला, शिकारी जानवरों से बचना, बीमारियों का सामना करना, ये सब शामिल है। और वसाइल के लिए मुकाबला? जी बिल्कुल, वसाइल जैसे कि जगह, रोशनी, पानी, यहाँ तक कि मौसमी हालात जैसे सख्त सर्दी या खुश्क साली, उनका मुकाबला करना भी इसी जिद्दोजहद का हिस्सा है। तो ये काफी वसी तारीफ है। बहुत वसी। डार्विन खुद मिसालें देते हैं, जैसे वो कहते हैं कि सहरा के किनारे उगने वाला पौधा वो असल में खुश्क साली के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहा है, यानी नमी हासिल करने के लिए। बिल्कुल। या एक पौधा जो हजारों की तादाद में बीज पैदा करता है, लेकिन उनमें से औसतन सिर्फ एक आधी मुकम्मल पौधा बन पाता है। वो क्यों? क्योंकि वो दूसरे पौधों से जगह और रोशनी और ग़िज़ाइयत के लिए मुकाबला कर रहा है। ये तो पौधों की बात हुई, जानवरों में भी ऐसा ही है?
जी हाँ, डार्विन मिसलटो की मिसाल भी देते हैं, वो पौधा जो दूसरे दरख्तों पर उगता है ना। हाँ, वो पैरासाइट की तरह। जी, वो अपने बीज फैलाने के लिए परिंदों पर इन्हिसार करता है, तो वो दूसरे फलदार पौधों के साथ परिंदों की तवज्जो हासिल करने के लिए एक तरह से मुकाबले में है। वाह, ये तो काफी गहरी बात है। लेकिन ये मुकाबला इतना शदीद क्यों है? मतलब इसकी जड़ क्या है? हाँ, यहीं पर एक और अहम तस्वुर आता है, माल्थस का उसूल। थॉमस माल्थस, वो माहिर माशियात? जी वही। डार्विन उनके आबादी पर लिखे गए मजमून से बहुत मुतासर थे। माल्थस ने कहा था कि आबादी में इजाफे की जो सलाहियत है वो हमेशा जियोमेट्रिकल शरह से होती है। ज्योमेट्रिकल यानी ज़र्ब दर ज़र्ब, 2, 4, 8, 16 इस तरह? बिल्कुल। जबकि खुराक के वसाइल वो हिसाबी शरह से बढ़ते हैं, यानी 1, 2, 3, 4। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आबादी वसाइल से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ सकती है अगर कोई रोक टोक ना हो। यही नुक्ता है। डार्विन ने इसी उसूल को तमाम जानदारों पर लागू किया। वो हाथी वाली मिसाल बड़ी जबरदस्त है जो डार्विन ने दी है। हाँ, बताइए जरा। कि हाथी, जो शायद सबसे सुस्त रफ्तारी से नस्ल बढ़ाने वाला जानवर समझा जाता है, अगर उसकी नस्ल बगैर किसी रुकावट के बढ़ती रहे तो सिर्फ 750 साल में एक जोड़े से तकरीबन 1,90,00,000 हाथी पैदा हो सकते हैं। 1,90,00,000? लेकिन जाहिर है ऐसा होता तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि वसाइल महदूद हैं। खुराक, पानी, जगह और फिर हर जानदार को अपनी जिंदगी में किसी न किसी मरहले पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता, चाहे वो बीज हो, अंडा हो, बच्चा हो या बालिग। बीमारी लग सकती है, कोई शिकारी खा सकता है, मौसम की सख्ती हो सकती है, खुराक की कमी हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर पैदा होने वाला जानदार जिंदा रहकर नस्ल नहीं बढ़ा पाता? बिल्कुल नहीं, ज्यादातर नहीं बढ़ा पाते। तो फिर कौन बचता है? कौन नस्ल आगे बढ़ाता है? सिर्फ चंद अफराद। और वो कौन से अफराद होते हैं? वो जो अपने मखसूस माहौल के लिए दूसरों की निस्बत थोड़ा बेहतर तौर पर मौजू होते हैं। अच्छा, तो ये है वो तस्वुर जिसे इम्तियाजी बका या डिफरेंशियल सर्वाइवल कहते हैं। जी हाँ, यानी बका सबके लिए यकसा नहीं है, फर्क है। और ये बका सिर्फ दूसरे जानदारों से मुकाबले पर ही मुनहसिर नहीं। आपने मौसम का भी जिक्र किया था। जी, जोग्राफियाई और मौसमी असरात बहुत अहम हैं। डार्विन ने खुद मुशाहिदा किया था कि 1854-55 की शदीद सर्दी में उनके अपने इलाके में परिंदों की एक बड़ी तादाद, तकरीबन 80% हलाक हो गई थी। 80%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, तो मौसम बरारास्त भी जानलेवा हो सकता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मौसम हालात को मुश्किल बना देता है। जैसे खुराक कम हो जाती है या कोई बीमारी फैल जाती है, उससे मुकाबला और शदीद हो जाता है। अच्छा, ये भी एक दिलचस्प नुक्ता है कि जब हम किसी नौ को एक इलाके से दूसरे इलाके जाते हुए कम होता देखते हैं तो शायद उसकी वजह सिर्फ मौसम की बराह रास्त सख्ती ना हो। हाँ, क्या मतलब? मतलब ये कि हो सकता है बदला हुआ मौसम उस नौ के लिए तो बुरा हो, लेकिन उसके दुश्मनों या उसके हरीफों, कंपेटिटर्स के लिए ज्यादा अच्छा हो गया हो। फितरत में ये जो ताल्लुकात हैं, ये बेहद पेचीदा हैं, अक्सर गैर मुतवक्के भी होते हैं। उन्होंने स्कॉटलैंड की मिसाल दी थी कि एक बड़ी चिड़िया मसल थ्रश, उसकी तादाद बढ़ी तो एक छोटी चिड़िया सॉन्ग थ्रश की तादाद कम हो गई। क्यों? गालिबन खुराक के लिए मुकाबला बढ़ गया। डार्विन कहते हैं कि उमूमन जो करीबी ताल्लुक रखने वाली अनवा होती है ना, एक ही जीनस की, उनमें मुकाबला ज्यादा सख्त होता है। क्योंकि उनकी जरूरियात मिलती जुलती होती हैं। बिल्कुल, उनकी आदत, उनकी साख्त, उनकी खुराक, वो सब मिलती जुलती होती हैं, तो वो फितरत में तकरीबन एक ही जगह, एक ही किरदार या नीश के लिए मुकाबला कर रही होती हैं। तो अब इन सब बातों को जोड़ें, ये जद्दोजहद, ये मुकाबला, माल्थिस का उसूल, इम्तियाजी बका, यहां से कुदरती इंतखाब या नेचुरल सिलेक्शन का नजरिया कैसे बनता है? देखें, डार्विन दलील ये देते हैं कि बका की यही जो मुसलसिल हमागीर जिद्दोजहद है, यही कुदरती इंतखाब को चलाती है। ये इंजन है। इंजन किस तरह? इस तरह के कोई भी छोटी से छोटी तब्दीली या खुसूसियत, अगर वो किसी जानदार के लिए उसके पेचीदा माहौल में जरा सा भी फायदामंद साबित हो, चाहे वो फायदा शिकारी से बचने में मदद दे या खुराक बेहतर तरीके से हासिल करने में या मौसम का मुकाबला करने में या साथी तलाश करने में, जी बिल्कुल, तो वो मामूली सा फायदा भी
اس جاندار کے زندہ رہنے اور نسل بڑھانے کے امکانات کو بڑھا دیتا ہے دوسروں کے مقابلے میں۔ اور چونکہ خصوصیات وراثت میں ملتی ہیں، ہاں، چونکہ وہ خصوصیات اگلی نسل میں منتقل ہوتی ہیں تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو فائدہ مند خصوصیات ہیں یہ آبادی میں زیادہ عام ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ جدوجہد جو ہے یہ ایک طرح سے چھانٹی کا عمل ہے، ایک فلٹر ہے جو غیر موضوع کو نکال دیتا ہے اور موضوع کو آگے بڑھنے دیتا ہے۔ بالکل، خلاصہ یہی ہے۔ تیسرے باب میں ڈارون نے قدرتی انتخاب کی بنیاد رکھ دی ہے۔ وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ زندگی کوئی پرسکون ٹھہری ہوئی چیز نہیں ہے، یہ ایک متحرک مقابلہ ہے، ایک کشمکش ہے جہاں چھوٹے چھوٹے فائدے بھی بہت بڑا فرق ڈال سکتے ہیں۔ اور بقا کی یہی جد و جہد وہ میکینزم ہے جس کے ذریعے فطرت غیر ارادی طور پر بہترین موضوع تبدیلیوں کو منتخب کرتی ہے۔ تو یہی ارتقاء کا انجن ہے۔ جی، یہی وہ انجن ہے جو انواع کی بتدریج تبدیلی کے لیے راستہ بناتا ہے۔ بہت خوب۔ تو یہ تھا باب دین کا خلاصہ۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اگلے باب میں ہم یہ دیکھیں گے کہ قدرتی انتخاب ان تغیرات پر، ان ویریشنز پر کیسے عمل کرتا ہے اور وقت کے ساتھ نئی انواع کیسے بنتی ہیں۔ جی، وہ بھی بہت دلچسپ بحث ہوگی۔ اس باب کے بارے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں یا کوئی خیالات ہیں تو نیچے کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ ڈارون کے اس شاہکار اصل انواع کے باب بباب سفر میں ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یہ واقعی غور طلب بات ہے کہ بقا کی جدوجہد کا یہ بنیادی تصور آج بھی ماحولیات، ایکولوجی اور ارتقائی حیاتیات، ایولیوشنری بایولوجی کی بنیاد ہے۔ یوٹیوب چینل لرن ود حمزہ یعقوب میں خوش آمدید۔ آج ہم چارلز ڈارون کی کتاب آن دی اوریجن آف اسپیشیز کے سفر کو آگے بڑھا رہے ہیں اور بات کریں گے چوتھے باب کی، یعنی نیچرل سلیکشن، قدرتی انتخاب۔ یہ کہنا شاید غلط نہ ہو کہ یہ پوری کتاب کے آپ کہہ سکتے ہیں بنیادی ترین ابواب میں سے ایک ہے۔ یقیناً، بالکل۔ یہ وہ باب ہے جہاں ڈارون اپنا سب سے مشہور نظریہ جو انقلابی بھی تھا وہ پیش کرتے ہیں، قدرتی انتخاب۔ کبھی کبھی لوگ اسے بس سروائیول آف دا فٹسٹ کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ اصل میں اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ اچھا، تو بنیادی طور پر ڈارون یہ کہہ رہے ہیں کہ جانداروں میں نا قدرتی طور پر چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، ویریشنز جنہیں کہتے ہیں، اور اگر کوئی تبدیلی کسی جاندار کو اپنے ماحول میں زندہ رہنے میں یا نسل بڑھانے میں تھوڑا سا بھی فائدہ دے تو وہ خصوصیت امکان ہے کہ اگلی نسلوں میں جائے گی۔ کیا یہ ٹھیک سمجھا میں نے؟ بالکل، آپ نے صحیح خلاصہ کیا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے فائدے ہیں نا، یہ نسل در نسل جمع ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی نسل میں کوئی بہت بڑا فرق آ جائے، نہیں، یہ لاکھوں سال پر پھیلا ہوا ایک بہت ہی آپ کہیں سست رفتار لیکن مسلسل عمل ہے۔ ڈارون نے اس باب میں اسی کیومولیٹو پاور یعنی جمع ہونے والی طاقت پر بہت زور دیا ہے۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ کیسے معمولی فائدے وقت کے ساتھ اتنا بڑا فرق پیدا کر دیتے ہیں، لیکن ڈارون صرف فائدہ مند خصوصیات کے بچ جانے کی بات تو نہیں کرتے، وہ ناموافق خصوصیات کے خاتمے کا بھی ذکر کرتے ہیں، ہے نا؟ جی ہاں، بالکل۔ یہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ قدرتی انتخاب صرف اچھی چیزوں کو چنتا نہیں ہے، بلکہ جو خصوصیات ماحول کے لیے ٹھیک نہیں ہے یا شاید نقصان دہ ہیں ان کو آہستہ آہستہ ختم بھی کرتا جاتا ہے۔ تو جن جانداروں میں یہ ناموافق خصوصیات ہوتی ہیں، ظاہر ہے ان کے زندہ رہنے اور نسل بڑھانے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، اس لیے وقت کے ساتھ وہ خصوصیات آبادی سے کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ٹھیک۔ اس باب میں ایک اور بڑا تصور ہے افتراق کا، ڈائیورجنس کا۔ اس کا کیا مطلب ہے اور یہ قدرتی انتخاب سے کیسے جڑا ہوا ہے؟ یہ ہمیشہ مجھے تھوڑا سا پتہ نہیں پیچیدہ لگتا ہے۔ ہاں، یہ تھوڑا سا شاید سمجھنے میں وقت لیتا ہے۔ دیکھیں، افتراق کا مطلب بنیادی طور پر یہ ہے کہ کیسے ایک ہی کامن اینسیسٹر یعنی جد امجد سے آنے والی نسلیں وقت کے ساتھ ساتھ بالکل مختلف شکلوں میں، مختلف انواع میں تقسیم ہو جاتی ہیں۔ اس کو آپ ایک درخت کی طرح سوچیں، ایک تنا ہے، اس سے شاخیں نکلتی ہیں، پھر ان سے مزید چھوٹی شاخیں۔ تو ڈارون کے مطابق قدرتی انتخاب جو ہے نا، وہ مختلف ماحول میں مختلف خصوصیات کو فوقیت دیتا ہے۔
اس لیے اگر ایک ہی نوع کے الگ الگ گروہ مختلف ماحول میں چلے جائیں تو ان پر سلیکٹو پریشرز یعنی انتخابی دباؤ مختلف ہوں گے، اور اسی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے جائیں گے، اتنے مختلف کہ وہ نئی انواع بن جائیں۔ یہی تو بنیاد ہے حیاتیاتی تنوع کی، بائیو ڈائیورسٹی کی۔ اچھا، تو یہ ڈائیورجنس ہی ہے جو زندگی کی اتنی قسمیں جو ہم دیکھتے ہیں اس کی وضاحت کرتا ہے، اور اس سارے عمل میں معدومیت یعنی ایکسٹنکشن کا کیا کردار ہے؟ ڈارون اسے بھی کافی اہم سمجھتے ہیں۔ بالکل بالکل، معدومیت ارتقاء کا ایک لازمی حصہ ہے، لازم و ملزوم سمجھیں۔ جب ماحول بدلتا ہے یا کوئی نئی، زیادہ بہتر، زیادہ موضوع انواع سامنے آتی ہیں تو ظاہر ہے پرانی کم موضوع انواع مقابلے میں پیچھے رہ جاتی ہیں اور آخرکار ختم بھی ہو سکتی ہیں۔ ڈارون کے مطابق معدومیت اور نئی انواع کا بننا یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ ایک طرح سے معدومیت نئی انواع کے لیے جگہ بناتی ہے، وسائل مہیا کرتی ہے تاکہ وہ پھنپ سکیں۔ تو یہ حیاتیاتی تنوع بنانے میں ایک منفی کردار لگتا ہے، لیکن ہے بہت اہم۔ ڈارون نے ایک اور دلچسپ موازنہ کیا ہے۔ انسان جو پودوں اور جانوروں کی افزائش کرتے ہیں، مصنوعی انتخاب آرٹیفیشل سلیکشن، اس کا موازنہ قدرتی انتخاب سے کیا ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے بنیادی طور پر؟ جی، یہ بہت اچھا نقطہ ہے جو ڈارون نے اٹھایا۔ دیکھیں، مصنوعی انتخاب میں انسان اپنی مرضی کی خصوصیات چنتا ہے، جیسے زیادہ دودھ دینے والی گائے یا کوئی خاص رنگ کا پھول والا پودا، اور پھر صرف انہی جانداروں کی افزائش نسل کرواتا ہے۔ یہ ہے تو قدرتی انتخاب کی طرح، لیکن اس میں انسان کا ارادہ شامل ہے اور یہ بہت تیز ہوتا ہے نسبتاً۔ قدرتی انتخاب میں کوئی باہر سے چننے والا نہیں ہے، یہ تو ماحول اور جاندار کے بیچ جو جدوجہد ہے بقا کی، اس کا نتیجہ ہے، اور یہ عمل بہت ہی سست رفتار ہے، ہر طرف سے اثر کرتا ہے اور اس کا کوئی شعوری مقصد نہیں ہوتا۔ قدرت تو ان خصوصیات کو چنتی ہے جو مجموعی طور پر جاندار کی بقا اور نسل کشی کے لیے بہترین ہو، نہ کہ صرف وہ جو انسان کو اچھی لگے۔ قدرت کا طریقہ کہیں زیادہ لطیف ہے اور بہت لمبی مدت پر کام کرتا ہے۔ اور ڈارون اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ یہ سارا عمل کوئی اتفاق یا قسمت کا کھیل نہیں ہے، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل، یہ باب اسی غلط فہمی کو دور کرتا ہے کہ ارتقاء بس تکے سے ہوتا ہے۔ ڈارون کا استدلال یہ ہے کہ اگرچہ ویریشنز یعنی تبدیلیاں وہ بے ترتیب طور پر ظاہر ہو سکتی ہیں، لیکن ان کا انتخاب سلیکشن وہ بے ترتیب نہیں ہے، وہ تو مستقل قوانین کے تحت ہوتا ہے جو گہرے وقت ڈیپ ٹائم کے پیمانے پر بہت آہستہ آہستہ کام کرتے ہیں۔ یہ ایک منظم قدرتی عمل ہے جو زندگی کو ماحول کے مطابق ڈھالتا ہے۔ تو مطلب یہ باب ہمیں زندگی، تبدیلی اور موافقت کو سمجھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ دیتا ہے۔ یہ واقعی انقلابی سوچ تھی۔ بلا شبہ یہ باب ڈارون کے نظریے کا دل ہے، بالکل مرکز۔ یہ واضح کرتا ہے کہ زندگی ایک ہی وقت میں مستحکم بھی ہے اور مسلسل بدل بھی رہی ہے، منظم بھی ہے اور ناقابل یقین حد تک متنوع بھی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انواع کوئی حادثاتی طور پر یا کسی پہلے سے بنے ڈیزائن کے مطابق نہیں آ جاتی، بلکہ وہ تو نسل در نسل لا تعداد جدوجہد، موافقت اور وراثت کے ایک بہت لمبے اور پیچیدہ عمل سے وجود میں آتی ہیں۔ اس گہرے جائزے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ تو چوتھا باب ہمیں ارتقاء کا بنیادی طریقہ کار دیتا ہے، قدرتی انتخاب۔ جیسا کہ ہم نے بات کی، ڈارون نے دکھایا کہ قدرت خود ان خصوصیات کو منتخب کرتی ہے جو جانداروں کو زندہ رہنے اور نسل بڑھانے میں مدد دیتی ہیں، جبکہ جو کم مفید خصوصیات ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہیں۔ جی، اور آنے والے ابواب میں ہم مزید تفصیل سے دیکھیں گے کہ یہ قدرتی انتخاب عملی زندگی میں کیسے کام کرتا ہے، جبلتوں پر اس کا کیا اثر ہے، ہائبرڈزم یعنی دوگلی نسلیں کیسے بنتی ہیں، فوسل ریکارڈ ہمیں کیا بتاتا ہے، اور بھی بہت کچھ۔ اس باب کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ نیچے کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اور اگر آپ ڈارون کے اس انقلابی کام کی کھوج ہمارے ساتھ جاری رکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہم ایک ایک باب کر کے اس کا جائزہ لیتے رہیں گے۔ لرن ود حمزہ یعقوب میں خوش آمدید۔ آج ہم چارلز ڈارون کی انواع کے ابتدا کا سفر جاری رکھ رہے ہیں، اور آج ہم باب پنجم یعنی تغیر کے قوانین پر بات کریں گے۔ یہ ایک گہرا جائزہ ہے ان تبدیلیوں کے ذرائع کا جن پر قدرتی انتخاب عمل کرتا ہے۔ بالکل،
इस बात में डार्विन असल में ये खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये जानदारों में फर्क या तगय्युरात आखिर आते कहां से हैं। अब देखें, उस वक्त जीनियात का तो इल्म था नहीं, लेकिन डार्विन ने अपने मुशाहदे की बुनियाद पर तगय्युर की वजूहात और उसके अंदाज पर कई काफी दिलचस्प नुकात पेश किए। वो ये समझ रहे थे कि हर तब्दीली बस ऐसे ही नहीं हो जाती, उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। अच्छा, तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी वजूहात थीं जिनका वो जिक्र कर रहे थे। पहला अहम नुक्ता तो है आज़ा का इस्तेमाल और अदम इस्तेमाल, यानी जो उज़्व ज्यादा काम आए वो मजबूत और जो ना आए वो कमजोर या शायद गैर फाल हो जाए। ये ख्याल आज तो शायद हमें बड़ा सीधा सा लगे, लेकिन इस वक्त ये माहौल के असर को समझने की एक, आप कह लें, अहम कोशिश थी। जी हाँ, बिल्कुल। और डार्विन ने इसकी कई मिसालें भी दी, जैसे वो जजीरों पर रहने वाले परिंदे जहां शिकारी जानवर नहीं होते ना, तो उनके पर वक्त के साथ परवाज के काबिल नहीं रहते। डार्विन का ख्याल था कि शायद उन्हें उड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो बस ये सलाहियत कम हो गई। इसी तरह वो मदेरा जजीरे के भूनरों की मिसाल, जिनके पर या तो होते ही नहीं या बहुत छोटे होते हैं। हाँ, ये मदेरा वाली मिसाल तो खासी दिलचस्प है, क्योंकि डार्विन ने यहां मेरा ख्याल है कुदरती इंतखाब का भी जिक्र किया कि शायद वो भुनरे जो कम उड़ते थे वो बच गए क्योंकि हवा उन्हें उड़ाकर समुद्र में नहीं ले जा सकी। बिल्कुल बिल्कुल, डार्विन ने इन दोनों चीजों को मुमकिना वजाहत माना, यानी अदम इस्तेमाल भी और कुदरती इंतखाब भी। एक और बड़ा हैरानकुन मुशाहिदा जो डार्विन ने किया वो था निशोनुमा का बाहमी ताल्लुक, कॉरिलेशन ऑफ ग्रोथ जिसे कहते हैं। यानी जानदार एक पूरा, आप कह लें, जुड़ा हुआ निजाम है। एक हिस्से में तब्दीली आए तो दूसरे बज़ाहिर गैर मुताल्लिका हिस्से पर भी असर पड़ सकता है। अच्छा, ये तो वाकई अजीब सी बात लगती है। जैसे वो मिसाल है कि नीली आंखों वाली सफेद बिल्लियां अक्सर बहरी होती हैं। क्या डार्विन ये समझ पाए थे कि ऐसा क्यों होता है? मतलब उसकी वजह क्या है? देखिए, वो उसकी बुनियादी वजह यानी जो जेनेटी ताल्लुक है वो तो नहीं जान सके थे। जाहिर है उस वक्त इल्म नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसे कई राब्ते नोट किए, जैसे कबूतरों में परों वाले पांव और छोटी चोंच का आपस में ताल्लुक, या वो बगैर बालों वाले कुत्तों में दांतों की कुछ खराबी। और उन्होंने वो मुआवजा और किफायत शेयारी का उसूल भी देखा, कॉम्पेंसेशन एंड इकोनॉमी, कि अगर कोई जानदार एक खसूसियत पर ज्यादा तवन्नाई लगा रहा है तो दूसरी पर कम कर सकता है। जैसे ज्यादा दूध देने वाली गाय का शायद मोटा होना मुश्किल हो। और फिर वो नजरिया आता है जिस पर काफी बहस हुई है, हासिल करदा खुसूसियात की विरासत। यानी वो खुसूसियात जो कोई जानदार अपनी जिंदगी में माहौल की वजह से या इस्तेमाल से हासिल करता है, वो अगली नस्ल में चली जाएं। ये ख्याल वैसे लेमार्क से ज्यादा जोड़ा जाता है, लेकिन डार्विन ने भी इसे खास तौर पर इस्तेमाल और अदम इस्तेमाल के असरात की वजाहत के लिए अहम समझा। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि भाई जीनियात की दरियाफ्त से पहले ये काफी मंतकी वजाहत लगती थी। अगर कोई उज़्वे इस्तेमाल से मजबूत हो रहा है तो क्यों ना वो मजबूत हालत अगली नस्ल को मुंतकिल हो। आज तो हम जानते हैं कि विरासत का निजाम जरा मुख्तलिफ है, ये ऐसे काम नहीं करता, लेकिन डार्विन के जमाने में ये मुशाहिदे पर मबनी एक मफरूजा था। उन्होंने पालतू जानवरों और कुदरती अनवा में तगय्युर का मुवाजना भी किया है ना, कि पालतू जानवरों में इंसान अपनी मर्जी की नस्लें तैयार करता है, जिसे मुंतखब अफजाइश नस्ल कहते हैं। उससे उन्हें क्या अंदाजा हुआ? इससे उन्हें, आप कह लें, एक पैमाना मिला कि अनवा में तब्दीली की कितनी ज्यादा सलाहियत मौजूद है। जब इंसान खुद जानबूझकर किसी खास खुसूसियत पर, जैसे कबूतर की चूंच की शक्ल हो या दुम की साख्त, इस पर तवज्जो देकर नस्ल कशी करता है तो बहुत ही मुख्तसर अरसे में बहुत ज्यादा फर्क पैदा हो जाता है। तो ये चीज जाहिर करती थी कि फितरत में भी तगय्युर का वो खामाल, वो पोटेंशियल मौजूद है जिस पर कुदरती इंतखाब अपना काम कर सकता है। और आखिर में उन्होंने जिनसी इंतखाब यानी सेक्सुअल सिलेक्शन का भी थोड़ा सा जिक्र किया। ये कुदरती इंतखाब से थोड़ा मुख्तलिफ कैसे है? हाँ, देखें, कुदरती इंतखाब का ताल्लुक अमूमन जिंदा रहने यानी बका, सर्वाइवल से होता है, जबकि जिनसी इंतखाब का ताल्लुक ज्यादातर इफ्जाइश नस्ल, रिप्रोडक्शन से है। ये अक्सर नर जानवरों में नजर आता है, जैसे मोर के वो खूबसूरत पर या हिरन के सींग। ये खुसूसियात शायद बराह रास्त जिंदा रहने में मदद ना दें, लेकिन ये मादा को मुतवज्जा करने या दूसरे नरों पर सबकत ले जाने में मदद देती हैं, जिससे उनके जीन्स अगली नस्ल तक पहुंचने के इम्कानात बढ़ जाते हैं।
تو اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں باب پنجم میں ڈارون تغیر کے مختلف ممکنہ ذرائع اور اس کے انداز کو آپ کہہ لیں ٹٹول رہے ہیں. بھلے ہی ان کی کچھ وضاحتیں آج ہمیں پوری طرح درست نہ لگیں، لیکن یہ کوشش بذات خود بڑی انقلابی تھی. بالکل، یعنی ڈی این اے اور جینیات کو جانے بغیر صرف مشاہدے کی بنیاد پر تغیر کی اہمیت کو پہچاننا اور اس کی ممکنہ وجوہات تلاش کرنا، یہ ایک غیر معمولی بصیرت تھی. ڈارون یہ سمجھ گئے تھے کہ تغیر ہی وہ اینٹیں ہیں، وہ را مٹیریل ہے جس سے ارتقاء کی عمارت تعمیر ہوتی ہے. تو ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. باب پنجم ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ارتقاء تغیر کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ تغیر چاہے کتنا ہی معمولی کیوں نہ لگے، یہ ہمیشہ موجود رہتا ہے. جی ہاں، اور اگرچہ ڈارون وراثت کے اصل میکانزم کی وضاحت نہیں کر سکے، ان کے مشاہدات آج بھی ارتقائی حیاتیات کی بنیاد ہیں. انہوں نے یہ پہچان لیا تھا کہ تغیر کے بغیر قدرتی انتخاب کے پاس عمل کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، اور یہ کہ چھوٹے چھوٹے فرق ہی وقت کے ساتھ ساتھ بہت بڑے ارتقائی نتائج کا باعث بن سکتے ہیں. بالکل، اور آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ یہ تغیرات جبلتوں میں، فوسل ریکارڈ میں، ہائبریڈائزیشن یعنی مخلوط نسلوں میں اور بہت سی دوسری چیزوں میں کیسے نظر آتے ہیں. جیسے وہ ایک مثال ہے نا گھوڑے، گدھے اور زیبرا کی. ان کی مختلف نسلوں یا ان کے ملاپ سے پیدا ہونے والے بچوں میں کبھی کبھی وہ دھاریاں واپس آ جاتی ہیں، چاہے والدین میں نہ ہوں. یہ ایک مشترکہ دھاری دار جد کی طرف اشارہ کرتا ہے. ڈارون نے اسے ریورژن کہا تھا، یعنی پرانے کردار کی طرف واپسی. یہ بھی تغیر کی ہی ایک شکل ہے. یہ واقعی دلچسپ ہے. اس سارے موضوع پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں تبصروں میں ضرور بتائیں، اور اگلے باب کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ ہم اس نظریے کی گہرائی میں جانا جاری رکھیں گے جس نے زمین پر زندگی کو سمجھنے کا انداز ہمیشہ کے لیے بدل دیا. لرن ود حمزہ یعقوب میں خوش آمدید. آج ہم چارلز ڈارون کی مشہور زمانہ کتاب آن دی اوریجن آف اسپیشیز کے ایک بہت اہم باب ششم کا جائزہ لے رہے ہیں. جی، نظریے پر مشکلات، ڈیفیکلٹیز آن تھیوری. بالکل، یہ وہ باب ہے جہاں ڈارون خود اپنے نظریے پر اٹھنے والے سب سے مشکل، آپ کہہ سکتے ہیں، اعتراضات کا سامنا کرتے ہیں. جی ہاں، اور وہ ان سے بھاگتے نہیں بلکہ کھل کر ان کا تجزیہ کرتے ہیں. یہ چیز ان کے سائنسی انداز فکر کی وہ پختگی کو ظاہر کرتی ہے. اور یہ اعتراضات واقعی سنجیدہ تھے. مثلاً یہ سوال کہ اگر انواع بتدریج تبدیل ہوئیں تو فوسل ریکارڈ میں وہ درمیانی حالتیں یعنی ٹرانزیشنل فارمز کیوں نہیں ملتی؟ ان کی کمی کیوں ہے؟ بالکل. اور پھر آنکھ جیسے ناقابل یقین حد تک پیچیدہ اعضاء کا سوال تھا. کیا واقعی ایسی چیزیں چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں سے قدرتی انتخاب کے ذریعے بن سکتی ہیں؟ ہاں، اور یہ بھی کہ کچھ جاندار اپنے ماحول میں بالکل پرفیکٹ کیوں لگتے ہیں، جیسے کسی نے انہیں خاص طور پر ڈیزائن کیا ہو. جبلتیں، انسٹنکٹس، وہ بھی ایک بڑا مسئلہ تھا. اتنے پیچیدہ رویے کیا وہ بھی بتدریج ارتقاء سے بنے؟ اور آج کل ہمیں جو الگ الگ انواع نظر آتی ہیں ان کے بیچ میں وہ لا تعداد درمیانی قسمیں، انٹرمیڈیٹ ویرائٹیز، وہ کہاں گئیں؟ دیکھیں، ڈارون کی خوبی یہی تھی کہ انہوں نے ان سوالات کو پوری ایمانداری سے مانا. انہوں نے تسلیم کیا کہ کچھ مشکلات واقعی اتنی گہری ہیں کہ وہ خود بھی ان پر سوچ کر الجھن محسوس کرتے تھے. لیکن وہ سمجھتے تھے کہ زیادہ تر مشکلات ظاہری ہیں، مطلب نظریے کے لیے مہلک نہیں. جی بالکل. ان کا خیال تھا کہ یہ ہمارے اس وقت کے علم کی کمی کی وجہ سے زیادہ مشکل لگ رہی ہیں. تو پھر انہوں نے ان درمیانی اقسام کی کمی کا کیا جواب دیا؟ زندہ جانداروں میں اور فوسلز میں، دونوں حوالوں سے. زندہ جانداروں کے لیے ان کی دلیل تھی کہ قدرتی انتخاب وہ خود ہی درمیانی کم موافق شکلوں کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ وہ بہتر والدین کا مقابلہ نہیں کر پاتے. صحیح کہا. مسابقت انواع کو تیزی سے الگ کرتی ہے. درمیانی قسمیں کم تعداد میں ہوتی ہیں، محدود علاقوں میں، اور محدوم ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. اور فوسلز کے بارے میں؟ فوسلز کے معاملے میں ڈارون کا موقف بڑا دلچسپ تھا. انہوں نے کہا کہ مسئلہ نظریے کا نہیں بلکہ ارضیاتی ریکارڈ کا ہے. فوسل بننا ایک بہت نایاب عمل ہے. اچھا. جی، خاص حالات چاہیے، اور زمین کی تاریخ کا زیادہ تر حصہ پتھروں میں محفوظ ہی نہیں ہوا. تو فوسلز کی کمی حیران کن نہیں. یہ تو واقعی ایک ہوشیارانہ نکتہ تھا.
لیکن آنکھ جیسے پیچیدہ عضو کے بارے میں کیا؟ ڈارون نے خود مانا کہ یہ سوچنا بھی مذاق اڑانے جیسا لگتا ہے کہ یہ قدرتی انتخاب سے بنی ہو۔ ہاں، انہوں نے اس مشکل کی سنگینی کو تسلیم کیا، لیکن پھر انہوں نے منطق کا سہارا لیا۔ انہوں نے دلیل دی کہ اگر ہم روشنی محسوس کرنے والے سادہ ترین عضو سے لے کر ایک پیچیدہ آنکھ تک بتدریج مراحل کا تصور کریں، جہاں ہر مرحلہ اپنے حامل کے لیے تھوڑا سا فائدہ مند ہو، بالکل، تو یہ ناممکن نہیں۔ انہوں نے مثالیں دیں کہ کیسے مختلف جانداروں میں آنکھ کی سادگی اور پیچیدگی کے مختلف درجات موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنی قوت متخیلہ کی حدود کو منطقی امکان پر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے۔ یعنی یہ ممکن ہے کہ ایک عضو ایک کام سے شروع ہو کر بالکل مختلف کام کرنے لگ جائے۔ جی ہاں، بالکل۔ جیسے گلہریاں جو پہلے صرف چھلانگ لگاتی تھیں، ان میں بتدریج جھلی نما ساختیں بن گئیں جو انہیں ہوا میں کچھ دیر وہ گلائیڈ کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ اڑن گلہری کی طرح؟ جی، یا پرندوں کے پر جو اڑنے کے لیے بنے، پینگوئن میں تیرنے کے لیے فنس جیسے بن گئے، اور شترمرغ میں محض سجاوٹی رہ گئے۔ اور وہ مچھلی کے سوئم بلیڈر والی مثال؟ ہاں، وہ بھی زبردست ہے۔ تیرنے میں مدد دینے والا عضو خشکی پر آنے والے جانوروں میں پھیپھڑوں میں تبدیل ہو گیا۔ یہ ساخت کی تبدیلی اور افعال کی تبدیلی کی بہترین مثالیں ہیں۔ اور ان اعضاء کا کیا جن کی بظاہر کوئی خاص اہمیت نہیں لگتی، جیسے آپ نے کہا تھا زرافے کی دم؟ ڈارون کہتے ہیں کہ ہم اکثر کسی عضو کی پوری اہمیت نہیں سمجھتے۔ ہو سکتا ہے زرافے کی دم مکھیوں کو بھگانے کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہو۔ اچھا، یہ تو سوچا ہی نہیں تھا۔ جی، اس کے علاوہ وراثت کے قوانین، جسم کے مختلف حصوں کی نشوونما کا آپس میں تعلق اور جنسی انتخاب بھی ایسے اعضاء کی موجودگی کی وجہ بن سکتے ہیں جن کا براہ راست فائدہ ہمیں واضح نہ ہو۔ ڈارون نے اس اصول پر بھی زور دیا کہ ناٹورا نان فاسٹ سالٹم، یعنی فطرت چھلانگ نہیں لگاتی۔ جی ہاں، اور یہ قدرتی انتخاب کے تصور سے بالکل ہم آہنگ ہے۔ قدرتی انتخاب چھوٹی بتدریج تبدیلیوں کے ذریعے ہی کام کرتا ہے، اچانک بڑی تبدیلیوں سے نہیں۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرتی انتخاب کامل جاندار پیدا کرتا ہے؟ نہیں، ڈارون کے مطابق ایسا بالکل نہیں ہے۔ قدرتی انتخاب مطلق کمال پیدا نہیں کرتا، بلکہ صرف مقابلے میں موجود دیگر انواع کے مقابلے میں بہتری لاتا ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ شہد کی مکھی کا ڈنک، وہ استعمال کرنے پر مکھی کی اپنی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ یقیناً کامل ڈیزائن تو نہیں ہے۔ صحیح۔ آخر میں انہوں نے دو بڑے حیاتیاتی اصولوں کو اپنے نظریے سے جوڑا، یونٹی آف ٹائپ اور کنڈیشنز آف ایگزسٹنس۔ بالکل، یونٹی آف ٹائپ یعنی ایک ہی گروپ کے جانداروں کی بنیادی ساخت میں مماثلت، جیسے ممالیہ جانوروں کے اعضاء میں ہڈیوں کی ملتی جلتی ترتیب۔ اس کی بہترین وضاحت مشترکہ جد سے ہوتی ہے۔ جی، اور کنڈیشنز آف ایگزسٹنس یعنی جاندار کا اپنے ماحول کے مطابق ہونا، یہ قدرتی انتخاب کے ذریعے پورا ہوتا ہے۔ ڈارون کے نزدیک اصل میں کنڈیشنز آف ایگزسٹنس ہی بڑا قانون ہے جو موافقت کے ذریعے یونٹی آف ٹائپ پر غالب آ جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ڈارون نے ان مشکلات کو اپنے نظریے کے خلاف ثبوت نہیں سمجھا، بلکہ انہیں مزید گہرائی میں سمجھنے اور اپنے دلائل کو مضبوط کرنے کا موقع جانا۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ باب 6 واقعی ڈارون کی کتاب کا ایک فکری طور پر بہت گہرا حصہ ہے۔ یہاں وہ مشکل سوالات سے گھبراتے نہیں۔ عہدے سے سمجھا جا سکتا ہے، یا کم از کم ان پر بات کی جا سکتی ہے۔ جی، ڈارون نے اپنے زمانے کے علم کی حدود کو تسلیم کیا، لیکن ان کا موقف تھا کہ یہ مشکلات مہلک خامیاں نہیں ہیں، بلکہ ایسے چیلنجز ہیں جن پر مستقبل میں سائنس مزید روشنی ڈالے گی۔ اس باب کو سمجھنا ہمیں ڈارون کے سائنسی طریقہ کار کی طاقت کا احساس دلاتا ہے، تنقید کے لیے کھلا رہنا، شواہد پر انحصار کرنا اور اپنی حدود کا ادراک رکھنا۔ بالکل، یہ ان کی ایمانداری اور سائنسی سوچ کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ ڈارون نے تو 19ویں صدی کے علم کی بنیاد پر ان مشکلات کا سامنا کیا، لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا آج کی جینیات اور مولیکولر بائیولوجی ان میں سے کچھ سوالات، جیسے پیچیدہ اعضاء کی تشکیل، پر بالکل نئی اور شاید غیر متوقع روشنی ڈالتی ہیں؟ اس پر غور کیجیے گا۔ یقیناً یہ ایک اہم نقطہ ہے آئندہ گفتگو کے لیے۔ تبصروں میں اپنے خیالات سے آگاہ کیجیے گا اور اگلے ابواب سے محروم نہ رہیں، جہاں ڈارون جبلتوں، فاسلز، درجہ بندی اور مزید موضوعات پر اپنا مقدمہ پیش کرنا جاری رکھتے ہیں۔ خوش آمدید لرن ود حمزہ یعقوب پر۔
آج ہم چارلز ڈارون کی آن دی اوریجن آف اسپیشیز پر اپنی گفتگو آگے بڑھا رہے ہیں، خاص طور پر باب ہفتم یعنی جبلت یا انسٹنکٹ۔ جی بالکل، یہ ایک واقعی بہت دلچسپ اور ایک طرح سے پراسرار پہلو ہے زندگی کا۔ بالکل، اور بنیادی سوال یہی ذہن میں آتا ہے کہ آخر جانور یہ سب پیچیدہ کام بغیر سیکھے کیسے کر لیتے ہیں؟ مطلب یہ جبلتیں آتی کہاں سے ہیں؟ ہاں، اور ڈارون کے لیے بڑا سوال یہ تھا کہ کیا یہ جبلتیں بھی بالکل جسمانی ساخت کی طرح قدرتی انتخاب یعنی نیچرل سلیکشن کے ذریعے ارتقا پا سکتی ہیں؟ صحیح، کیونکہ اگر نہیں تو اس کے پورے نظریے پر سوال اٹھتا ہے نا؟ یقیناً یہ اس کے نظریے کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا۔ تو اس باب میں ڈارون کوشش کرتا ہے یہ دکھانے کی کہ جبلت کوئی معجزہ یا پراسرار چیز نہیں، بلکہ یہ بھی ایک قدرتی ارتقائی عمل کا حصہ ہے۔ اچھا، تو وہ فرق کیسے واضح کرتا ہے؟ مطلب جبلت اور وہ رویے جو سیکھے جاتے ہیں ان میں؟ دیکھیں، ڈارون کا نقطہ یہ ہے کہ جبلتیں پیدائشی ہوتی ہیں، لیکن وہ پتھر پر لکیر نہیں ہوتی، ان میں بھی تھوڑا بہت فرق پایا جاتا ہے۔ فرق یعنی ایک ہی نوع کی مکھیوں میں چھتا بنانے کا طریقہ تھوڑا مختلف ہو سکتا ہے؟ ہاں بالکل، تھوڑا بہت تغیر ویریشن ہوتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ یہ فرق موروثی ہو سکتا ہے، نسل در نسل منتقل ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو اگر کوئی خاص جبلی رویہ کسی جانور کو زندہ رہنے یا اپنی نسل آگے بڑھانے میں ذرا سی بھی مدد دیتا ہو تو قدرتی انتخاب اسے منتخب کر لے گا۔ بالکل، وہ رویہ اگلی نسلوں میں زیادہ عام ہوتا جائے گا۔ تو اس نے کچھ مثالیں بھی دی ہیں نا، جیسے وہ شہد کی مکھیوں کا چھتا بنانا، جی، شہد کی مکھیوں کا مسدس ہیکساگونل خانے بنانا، یا وہ کوئل کا دوسروں کے گھونسلوں میں انڈے دینا۔ یہ تو بہت عجیب حرکت لگتی ہے۔ ہاں، کوئل کی مثال بہت دلچسپ ہے۔ ڈارون یہ دلیل دیتا ہے کہ یہ جبلتیں ہمیشہ سے ایسی کامل نہیں تھیں، یہ آہستہ آہستہ قدم بقدم بنی ہے۔ قدم بقدم کیسے؟ جیسے کوئل ہے، ہو سکتا ہے اس کی کوئی پرانی جد امجد اپنا گھونسلہ خود بناتی ہو، پھر شاید کسی نے کبھی کبھار دوسرے پرندے کے گھونسلے میں انڈا دے دیا ہو۔ اچھا، اگر اس سے اسے کوئی فائدہ ہوا، مثلاً اپنے بچوں کو پالنے کی مہلت بچ گئی، تو یہ عادت تھوڑی پختہ ہوئی ہوگی، پھر نسل در نسل یہ رجحان بڑھتا گیا، اور آخرکار ایک مکمل جبلت بن گئی کہ وہ انڈے ہی دوسروں کے گھونسلوں میں دیتی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے فائدے جمع ہوتے گئے۔ بالکل، ڈارون کا خیال تھا کہ ہمیں آج کل کی ملتی جلتی انواع میں اس بتدریج ارتقاء کے نشانات مل سکتے ہیں۔ اور وہ چیونٹیوں کی مثال، غلام بنانے والی چیونٹیاں، فارمیکا سینگوینیا۔ ہاں، وہ بھی کمال کی مثال ہے۔ فارمیکا سینگوینیا دوسری نسل کی چیونٹیوں کے پیوپے چرا کر لاتی ہے۔ جب ان سے چیونٹیاں نکلتی ہیں تو وہ غلاموں کی طرح کام کرتی ہیں۔ لیکن سینگوینیا خود بھی کچھ کام کرتی ہے نا؟ شاید آہستہ آہستہ بنا ہوگا، پہلے کبھی کبھار پیوپے لائے ہوں گے، پھر یہ عادت پختہ ہوتی گئی۔ اور شہد کی مکھیوں کے چھتے کا کیا؟ وہ مسدس خانے، وہ تو جیسے جیومیٹری کا شاہکار لگتے۔ ہاں، وہ بظاہر بہت پیچیدہ لگتے ہیں، لیکن ڈارون نے اس کی بھی بڑی خوبصورت وضاحت پیش کی۔ اچھا، اس نے کہا کہ فرض کریں مکھیوں کی بنیادی جبلت گول خانے بنانے کی ہے۔ اگر بہت سی مکھیاں ایک دوسرے سے ایک خاص کم سے کم فاصلے پر رہ کر گول دیواریں بنانا شروع کریں تو جہاں دیواریں ملیں گی وہاں سیدھی سطحیں بن جائیں گی؟ بالکل، اور اگر وہ یہ کام 2 تہوں میں کریں، اوپر نیچے، اور کوشش کریں کہ کم سے کم جگہ ضائع ہو، تو قدرتی طور پر ریاضی کے اصولوں کے تحت مسدس خانے بن جائیں گے۔ واہ! اور مسدس خانے بنانے میں موم سب سے کم استعمال ہوتا ہے، چونکہ موم بنانا مکھیوں کے لیے ایک قیمتی محنت طلب کام ہے۔ تو قدرتی انتخاب نے اس سب سے مؤثر طریقے کو فروغ دیا۔ زبردست۔ بالکل، لیکن یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ آتا ہے جو ڈارون نے خود بھی مانا۔ وہ کارکن مکھیاں یا چیونٹیاں جو خود بچے پیدا نہیں کر سکتی، اسٹیرائل کاسٹس۔ جی ہاں، یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ ان میں خاص جبلتیں اور حتیٰ کہ جسمانی ساختیں کیسے ارتقا پاتی ہیں جو ان کے ماں باپ سے مختلف ہوتی ہیں؟ اگر وہ خود اپنی نسل آگے نہیں بڑھا سکتی تو ان کی یہ خصوصیات اگلی نسل میں کیسے جاتی ہیں؟ یہ واقعی ایک، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈارون کے نظریے کے لیے ایک سنگین چیلنج تھا، اور یہاں ڈارون نے ایک انقلابی خیال پیش کیا۔ وہ کیا؟ اس نے کہا کہ قدرتی انتخاب صرف ایک فرد انڈیویجول پر نہیں، بلکہ کبھی کبھی پورے خاندان یا کمیونٹی پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اچھا، یعنی کمیونٹی سلیکشن؟
जी, इसे आप किन सिलेक्शन या ग्रुप सिलेक्शन की इब्तिदाई शक्ल कह सकते हैं। अगर किसी चूंटियों की कॉलोनी या मक्खियों के छत्ते में ऐसे कारकुन पैदा हों जो खुद तो बच्चे नहीं पैदा करते, लेकिन उनकी कोई खासियत, कोई खास जिबलत या जिस्मानी साख्त पूरी कम्युनिटी के लिए फायदेमंद हो, तो वो कम्युनिटी ज्यादा कामयाब होगी। बिल्कुल, वो कम्युनिटी फले फूलेगी और उस कम्युनिटी के जो तौलीदी अफराद हैं यानी मलका और नर, उनमें ये सलाहियत होगी कि वो आइंदा भी वैसे ही फायदेमंद कारकुन पैदा करें। अच्छा, तो कारकुनों की खुसूसियात बराह रास्त नहीं बल्कि उनके तौलीदी रिश्तेदारों के जरिए मुंतखब होकर आगे बढ़ती हैं। बिल्कुल सही। इसी तरह कारकुनों की मुख्तलिफ किस्में भी बन सकती हैं। फौजी चूंटियां आम कारकुन जिनकी साख्त और जिबलतें बिल्कुल मुख्तलिफ हों। ये फर्क कॉलोनी के लिए मुफीद था, इसलिए कुदरती इंतखाब ने इसे बरकरार रखा। तो इस बाब का लुबे लुबाब ये हुआ कि डार्विन ने रवैये जैसी पेचीदा चीज को भी कुदरती इंतखाब के दायरे में कामयाबी से शामिल कर लिया। यही इस बाब की असल कामयाबी है। इसने ये दिखाया कि जिबलत कोई पुरअसरार अतिया नहीं, बल्कि ये भी वक्त के साथ मरहलावार इर्तिका पा सकती है, चाहे वो चूंटियां हों, परिंदे हों या कीड़े मकोड़े। ये वाकई हयातियात, रवैये और इर्तिका को एक बड़े कैनवस पर जोड़ देता है। जी, ये जिंदगी की पेचीदगी को समझने में एक बहुत अहम कदम था। डार्विन आखिर में एक सख्त बात भी कहता है ना कि कोयल का अपने सोतीले बहन भाइयों को घोंसले से बाहर फेंकना या चूंटियों का गुलाम बनाना, ये सब फितरत के एक अमूमी कानून के नताइज हैं। फिर लो भूलो, तगय्युर पैदा करो, ताकतवर को जीने दो और कमजोर को मरने दो। हाँ, ये फितरत की एक हकीकत पसंदाना अगरचे सख्त तस्वीर पेश करता है। ये दिखाता है कि बका की जुद्दोजहद रवैयों की तश्कील में कितना गहरा किरदार अदा करती है। इस गहरी गुफ्तगू में हमारे साथ रहने का शुक्रिया। ये बाप वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जिसे हम फितरी रवैया कहते हैं, उसकी जड़ें कितनी गहरी और इर्तिकाई तारीख से जुड़ी हैं। बिल्कुल। और ये सवाल भी पैदा होता है कि जानदारों में बशमूल इंसान, मौरूसी रुझानात और सीखे हुए रवैये के दरमियान असल हद कहाँ है। इस बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और डार्विन के इस इनकलाबी काम के अगले अबवाब का जायजा लेने के लिए हमारे साथ रहिएगा। लर्न विद हमजा याकूब यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज हम चार्ल्स डार्विन की मशहूर किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज का मुताला जारी रखे हुए हैं। इस गुफ्तगू में हम बाब 8 यानी हाइब्रिडिज्म पर कुछ तफसील से बात करेंगे। जी, हाइब्रिडिज्म यानी दो नस्लियत। ये बाब हाइब्रिड्स मतलब दो मुख्तलिफ अनवाएं या वैरायटीज की जो औलाद होती है, उनके बड़े क्या कहते हैं दिलचस्प और कभी कभी पुरअसरार रवैये पर बात करता है। और इसमें बुनियादी सवाल यही उठता है ना कि कुछ हाइब्रिड्स तो ठीक रहते हैं, नस्ल बढ़ा सकते हैं, लेकिन दूसरे बांझ क्यों हो जाते हैं। बिल्कुल, और ये सवाल अहम है क्योंकि ये डार्विन के कुदरती इंतखाब के नजरिए से जुड़ा है। क्या ये हाइब्रिड्स इस नजरिए को सपोर्ट करते हैं या उसे चैलेंज करते हैं? सही। तो आज हम किन खास बातों पर गौर करेंगे? मेरा ख्याल है पहली नस्ल के क्रॉस और खुद हाइब्रिड्स के बांझपन में फर्क। जी, और ये कि बांझपन कोई पक्का उसूल नहीं है, इसमें बहुत फर्क पाया जाता है अनवा में। और क्रॉस ब्रीडिंग का किरदार फितरत में भी और जो इंसान करवाता है मसनूई इंतखाब में। और ये अहम तसव्वुर कि हाइब्रिडिज्म इर्तिका की राह में कोई ऐसी रुकावट नहीं जिसे उबूर ही ना किया जा सके, बल्कि कुछ शवाहिद तो ये भी बताते हैं कि शायद ये बांझपन खुद ही एक मुंतखब शुदा खुसूसियत बन गई हो। हाँ, ये भी एक जाविया है। डार्विन का मकसद असल में उस दलील का मुकाबला करना था कि चूंकि हाइब्रिड्स अक्सर नाकाम होते हैं, तो इसका मतलब है कि अनवा बिल्कुल अलग अलग बनी हैं और बदल नहीं सकती। अच्छा, तो डार्विन इसे एक रुकावट के बजाय एक मुतहर्रिक यानी डायनामिक हयातियाती अमल के तौर पर देखते हैं। जी बिल्कुल, जिसे तगय्युर, मुवाफकत और विरासत के पेचीदा तालमेल से समझा जा सकता है। तो आइए इस दिलचस्प मौजू की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये जो फर्क आपने बताया था, पहली नस्ल के क्रॉसेस, फर्स्ट क्रॉसेस की बांझपन और खुद हाइब्रिड औलाद की बांझपन में, वो क्या है? हाँ, ये एक अहम नुक्ता है। देखें, जब आप दो बिल्कुल मुख्तलिफ खालिस अनवा को पहली बार मिलाते हैं, तो अक्सर इनका मिलाप या तो होता ही नहीं, या बहुत मुश्किल से होता है, या बहुत कम औलाद पैदा होती है। हालांकि उन वालदैन
यानी खालिस अनवा के अपने तौलीदी आज़ा बिल्कुल ठीक काम कर रहे होते हैं। अच्छा। दूसरी तरफ उन क्रॉसेस से जो हाइब्रिड औलाद पैदा होती है ना, उनमें मसला अक्सर ये होता है कि उनके अपने तौलीदी आज़ा, खासतौर पर नर वाले हिस्से, वो नामुकम्मल या गैर फाल होते हैं। ओ, तो ये दो अलग अलग सतहों पर मसला है। बिल्कुल, ये फर्क बताता है कि तौलीदी निज़ाम में मुताबिकत ना होना दो मुख्तलिफ जगहों पर असर अंदाज हो सकता है। और ये बांझपन, जैसा कि आपने पहले भी इशारा किया था, ये कोई ब्लैक एंड व्हाइट चीज नहीं है, मतलब इसमें शिद्दत होती है। जी हाँ, बिल्कुल। कोलरोटर और खास तौर पर गार्टनर, उन्होंने इस पर बहुत काम किया, बहुत तजर्बात किए। गार्टनर ने तो खास तौर पर दिखाया कि बांझपन की सतह 0 से लेकर मुकम्मल जरखेजी तक कुछ भी हो सकती है। 0 से मुकम्मल जरखेजी तक? वाह! और उससे भी ज्यादा दिलचस्प बात रेवरेंड हर्बर्ट ने दरियाफ्त की। क्राइनम पौधों पर काम करते हुए उन्होंने 2 मुख्तलिफ अनवा के ऐसे हाइब्रिड बनाए जो ना सिर्फ जरखेज थे, अच्छा, बल्कि उनका क्रॉस उसी नौ के पौधों के कुदरती फर्टिलाइजेशन से भी ज्यादा कामयाब रहा। मतलब हर बेजे से पौधा बन गया। ये तो वाकई हैरानकुन है। ये तो उस आम ख्याल के बिल्कुल उलट है कि फितरत हमेशा खालिस नस्ल को ही तरजीह देती है। जी। तो फिर डार्विन इस ख्याल को कैसे रद्द करते हैं कि बांझपन कोई खास, मतलब अता करदा खुसूसियत है जो अनवा को अलग रखने के लिए बनाई गई है? डार्विन ने इसके लिए पौधों में पैवंदकारी यानी ग्राफ्टिंग की मिसाल इस्तेमाल की। वो कहते हैं कि जैसे एक पौधे की टहनी का दूसरे पर कामयाबी से लगना या ना लगना कोई खास दी हुई सलाहियत नहीं, बल्कि उन पौधों की साख्त उनकी फिजियोलॉजी में मुमासलत या फर्क पर मुनासिर है। अच्छा। इसी तरह 2 अनवा के दरमियान क्रॉसिंग की सलाहियत और उनके हाइब्रिड्स का बांझपन भी उनके तौलीदी निज़ामों में मौजूद अक्सर नामालूम हयातियाती फर्क की वजह से होता है। ये कोई पहले से तयशुदा रुकावट नहीं है। तो ये बस हयातियाती फर्क का एक नतीजा है। अच्छा, और ये रेसिप्रोकल क्रॉसेस का क्या मामला है? यानी जब नर और मादा अनवा को उलटकर क्रॉस करें, क्या नताइज एक जैसे रहते हैं? नहीं, अक्सर नहीं रहते। कोलरॉयटर ने मिराबिलिस पौधों पर तजुर्बात किए थे। एक नौ जलापा को दूसरी लॉन्गफ्लोरा के पोलन से आसानी से फर्टिलाइज किया जा सकता था, लेकिन उसका उलट यानी लॉन्गफ्लोरा को जलापा के पोलन से फर्टिलाइज करना वो तकरीबन नामुमकिन था। ओह, तो ये दिखाता है कि क्रॉसिंग की सलाहियत सिर्फ इस बात पर मुनहसर नहीं कि वो अनवा देखने में कितनी मिलती हैं या दर्जाबंदी में कितनी करीब हैं। तौलीदी निज़ाम की अंदरूनी केमिस्ट्री वो ज्यादा पेचीदा है। ये तो बहुत दिलचस्प है। अच्छा, और क्या हाइब्रिड्स की अगली नस्लों की जरखेजी पर कोई और चीजें भी असर डालती हैं? आपने गार्टनर का जिक्र किया था, करीबी अफजाइश नस्ल के हवाले से। हाँ, गार्टनर ने यह भी नोट किया था कि अगर हाइब्रिड पौधों की नस्लों को बार बार आपस में ही क्रॉस करवाया जाए तो उनकी जरखेजी और कम हो जाती है। अच्छा, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आमतौर पर करीबी रिश्तेदारों में अफजाइश नस्ल से कमजोरी आती है। तो इससे ये भी लगता है कि हाइब्रिड्स का बांझपन भी किसी हद तक अफजाइश नस्ल के आम उसूलों के मुताबिक ही चलता है। ठीक। अब पौधों से हटकर जानवरों की बात करें तो क्या जानवरों में हाइब्रिड्स अमूमन ज्यादा बांझ होते हैं? आम ख्याल तो यही है। हालांकि जानवरों पर तजुर्बात करना ज्यादा मुश्किल है। बहुत से जानवर कैद में अफजाइश नस्ल ही नहीं करते। सही। लेकिन यहाँ पालतू जानवरों का मामला बड़ा दिलचस्प है। मिसाल के तौर पर हमारे कुत्ते या मवेशी, ये माना जाता है कि इनकी जो मुख्तलिफ नस्लें हैं वो असल में शायद मुख्तलिफ जंगली अनवाह से आई हैं। अच्छा, लेकिन आज वो आपस में मुकम्मल तौर पर जरखेज हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या पालतू बनाए जाने के लंबे अमल ने उनके दरमियान जो तौलीदी रुकावटें थीं उन्हें कम कर दिया या खत्म कर दिया? ये वाकई एक अहम सवाल है। अब अगर हम एक ही नौ की मुख्तलिफ अकसाम या वैरायटीज की बात करें, उनके क्रॉस से जो औलाद होती है यानी मॉन्ग्रल्स, वो तो अमूमन जरखेज होते हैं। ठीक? जी हाँ, आमतौर पर ऐसा ही होता है और इसी को अनवा और अकसाम के दरमियान एक बड़ा फर्क समझा जाता था। लेकिन क्या इसमें भी कोई इस्तिस्ना है? बिल्कुल है। गार्डनर ने मकई की कुछ अकसाम के क्रॉस में कुछ हद तक बांझपन देखा। इसी तरह वर्बेस्कम पौधे की मुख्तलिफ रंगों वाली अकसाम के क्रॉस में भी। कोलरॉयटर को तो तंबाकू की एक ऐसी किस्म मिली जो दूसरी अकसाम के मुकाबले में एक बिल्कुल मुख्तलिफ नौ के साथ क्रॉस करने पर कम बांझ हाइब्रिड्स पैदा करती थी। अरे वाह! तो ये मिसालें तो वाकई अनवाओं और अकसाम के दरमियान की लकीर को काफी धुंधला देती हैं। जी बिल्कुल। ने पाया कि वालिदैन से मुशाबहत के जो कवानीन हैं, यानी औलाद किस हद तक किस वालिदैन से मिलती है, वो दोनों में हैरत अंगेज तौर पर एक जैसे हैं। अच्छा?
मसलन दोनों में कभी एक वालिदैन की खुसूसियात गालिब आ जाती हैं, जिसे प्रीपोटेंसी कहते हैं, और दोनों को अगर बार बार किसी एक खालिस वालिदैन से क्रॉस करवाया जाए, बैक क्रॉसिंग, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसी वालिदैन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। सही। तो ये मुमासिलतें भी इस ख्याल को तक़वियत देती हैं कि अनवा और अक़साम के दरमियान कोई मुतलक सख्त दीवार नहीं है। तो मजमूई तौर पर देखें तो बाब 8 ये दिखाता है कि डार्विन अपने नजरिए पर उठाए गए एक बहुत बड़े एतराज से कैसे निमटते हैं, यानी ये हाइब्रिड्स वाला मसला। बिल्कुल, वो हाइब्रिड बांझपन को अपने नजरिए की कमजोरी नहीं समझते, बल्कि इसे अनवा के एक दूसरे से अलग होने यानी डाइवर्जेंस का एक कुदरती हयातियाती नतीजा करार देते हैं। एक ऐसा नतीजा जो वक्त और कुदरती अवामिल ने, कुदरती इंतखाब ने तश्कील दिया है। डार्विन की बसीरत यही है कि फितरत कोई बहुत सख्त लगी बंदी लकीरों पर नहीं चलती। जिंदगी तो बहुत पेचीदा, एक दूसरे से जुड़े हुए तरीकों से इर्तिका पजीर होती है। जी हाँ, और हाइब्रिड्स जैसे मामलात जो बज़ाहिर गैर मामूली या इस्तिस्ना लगते हैं, उन्हें भी बतदरीज तब्दीली यानी ग्रेजुअलिज्म और कुदरती इंतखाब के नजरियात से समझा जा सकता है। तो ये बांझपन इर्तिका के रास्ते में कोई नाकाबिले अबूर रुकावट नहीं, बल्कि शायद खुद इर्तिकाई अमल का एक पहलू है। बिल्कुल, यही नुक्ता है। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। हमें जरूर बताइएगा कि इस बाब में कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा हैरानकुन लगी, और अगला हिस्सा देखना न भूलें, जिसमें हम डार्विन के जिंदगी के बारे में इनकलाबी विजन को मजीद गहराई से जानेंगे। खुश आमदीद। आज हम चार्ल्स डार्विन की किताब नस्ल इंसानी का आगाज के 9वें बाब पर बात कर रहे हैं, आर्जियाती रिकॉर्ड का नामुकम्मल होना। जी, ये एक बहुत अहम बाब है क्योंकि ये डार्विन के नजरिए पर एक बड़े एतराज का जवाब देता है। बिल्कुल, वो एतराज के भाई अगर इर्तिका हुआ है तो हमें हर जगह, हर पत्थर में वो दरमियानी कड़ियां, वो उबूरी शक्लें क्यों नहीं मिलती? हाँ, ये सवाल बहुत उठाया जाता था। डार्विन का बुनियादी जवाब, वो कहते हैं कि जमीन की तहों में महफूज तारीख यानी आर्जियाती रिकॉर्ड वो मुकम्मल है ही नहीं, इंतहाई नामुकम्मल है। अच्छा, तो आज हम यही देखेंगे कि ये रिकॉर्ड नामुकम्मल क्यों है, मतलब चट्टानी तह में खला क्यों है। जी, और ये भी कि कुदरती अवामिल जैसे कटाव वगैरह वो कैसे तारीख को मिटा देते हैं। और ये कि कुछ जानदार, खास तौर पे वो नरम जिस्म वाले, उनके फॉसिल्स क्यों में ही बनते या कम बनते हैं। बिल्कुल, और फिर ये नुक्ता कि उन दरमियानी शक्लों का ना मिलना, क्या ये वाकई इर्तिका के खिलाफ सबूत है या नहीं। और ये भी समझना कि फॉसिल बनना ये खुद कितना कम होने वाला अमल है, कितना नायाब है। जी हाँ, डार्विन का मकसद यही दिखाना है कि ये जो खला है रिकॉर्ड में, ये दरअसल कुदरती इंतखाब के नजरिए के ऐन मुताबिक है, ये कोई कमजोरी नहीं। तो बुनियादी एतराज यही था कि हर आर्जियाती तय इन दरमियानी शक्लों से भरी क्यों नहीं, अगर अनवाह आहिस्ता आहिस्ता बदली हैं। जी, लेकिन डार्विन फौरन ये वाजे करते हैं कि हम गलत किस्म की दरमियानी शक्लें ढूंढ रहे होते हैं। अच्छा, किस किस्म की ढूंढनी चाहिए? वो कहते हैं कि हमें मौजूदा अनवाह के बीच में बराह रास्त राबते नहीं मिलेंगे, जैसे समझें फैंटेल और पाउटर कबूतर। हाँ, वो कबूतरों की मिसाल तो उन्होंने पहले भी दी थी। जी, तो इन दोनों के दरमियान कोई दरमियानी शक्ल नहीं मिलेगी, बल्कि हमें हर नौ और उनके किसी मुश्तरका पुराने अब नापैद जद्दे अमजद के दरमियान वो राबते तलाश करने। अच्छा, जैसे एक दरख्त की दो शाखें, पत्तों में बराह रास्त जोड़ नहीं, जोड़ तने से है। बिल्कुल सही, यूं समझें, और इस तलाश को मजीद मुश्किल बनाता है आर्जियाती वक्त का पैमाना। हाँ, वो वक्त वाला मामला सर चार्ल्स लायल का काम है ना। जी हाँ, डार्विन बताते हैं कि जमीन की तहें बनने और फिर खत्म होने में, मतलब कटाव का शिकार होने में इतना लंबा अरसा लगता है कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उन्होंने साहिली चट्टानों की मिसाल दी थी ना, कि 1 इंच कटने में सदियां लग जाती हैं। बिल्कुल, तो सोचे मीलों मोटी चट्टानी तहों के बनने और फिर उनके गायब हो जाने में कितना वक्त लगा होगा। इस दौरान तो बहुत सारा रिकॉर्ड जाया हो जाता है। तो ये सिर्फ वक्त का मसला नहीं, बल्कि फॉसिल बनना खुद ही एक मुश्किल काम है। यकीनन, फॉसिल बनना कोई आम बात नहीं, ये गैर मामूली वाकया है। डार्विन ने एडवर्ड फोर्ब्स का हवाला दिया कि कई फॉसिल एल्वा ऐसी हैं जिनका सिर्फ एक आध टूटा फूटा नमूना मिला है बस। और नर्म जिस्म वाले जानदारों का क्या, जेलीफिश, केचुए? वो तो समझें कि तकरीबन कभी फॉसिल बनते ही नहीं, गल सड़ जाते हैं,
سمندر کی تہ میں ختم۔ یہاں تک کہ جن کے سخت خول ہوتے ہیں وہ بھی ہمیشہ محفوظ نہیں رہتے۔ جی نہیں، وہ چتمالس کی مثال دیتے ہیں، ایک سمندری کیڑا جو چٹانوں سے چپکا رہتا ہے۔ آج لاکھوں کروڑوں ہیں ساحلوں پر، ہاں، لیکن ان کے فوسلز بہت ہی کم ملتے ہیں۔ زیادہ تر مرنے کے بعد یا تو کھائے جاتے ہیں یا بس گل سڑ جاتے ہیں۔ فوسل بننے کے لیے خاص حالات چاہیے۔ تو پھر یہ ریکارڈ میں خلا کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ مطلب فوسل بننے کا عمل رک کیسے جاتا ہے؟ دیکھیں، ایسا ہے کہ ڈارون اس کی وضاحت زمین کی سطح کے اتار چڑھاؤ سے کرتے ہیں۔ فوسل بننے کے لیے بہترین حالات تب ہوتے ہیں جب زمین کا کوئی حصہ آہستہ آہستہ نیچے دھس رہا ہو، سبسائڈنس جسے کہتے ہیں، اچھا، اور اس پر تلچھٹ مطلب مٹی، ریت وغیرہ جمع ہو رہی ہو۔ لیکن یہ دھسنا ہمیشہ نہیں ہوتا رہتا۔ رک جاتا ہے؟ ہاں، لمبے وقفے آتے ہیں، اور کبھی کبھی تو زمین اوپر اٹھنا شروع ہو جاتی ہے، جسے ایلیویشن کہتے ہیں۔ جب زمین اوپر اٹھتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کٹاؤ شروع ہو جاتا ہوگا۔ بالکل، پرانی تہیں جو بنی تھیں وہ کٹنا شروع ہو جاتی ہیں، تو تاریخ لکھی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ مٹائی بھی جا رہی تھی۔ اوہ، اسی لیے شاید ہمیں وہ اچانک ظہور نظر آتا ہے کہ کوئی نسل ایک دم سے ریکارڈ میں آ گئی۔ جی بالکل، ڈارون کہتے ہیں کہ یہ اچانک ظہور اصل میں ظہور نہیں ہے، یہ نامکمل ریکارڈ کی وجہ سے لگتا ہے۔ یا پھر وہ کہیں اور سے ہجرت کر کے آئے ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے، ہجرت، یا پھر وہ کسی خاص ماحول میں کامیاب ہوئے اور تیزی سے پھیل گئے۔ مثال کے طور پر ممالیہ جانوروں کا ثانوی دور میں اچانک ملنا، ہاں، یا وہیل کا اوپری گرین سینڈ میں، یا وہی چتھا ملس کا چوک کے دور میں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اسی وقت پیدا ہوئے، ہو سکتا ہے وہ پہلے کہیں اور تھے، یا ان کے فوسل پہلی بار محفوظ ہوئے ہیں۔ یہ بات تو کافی سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ سب سے بڑا چیلنج، سب سے پرانی فوسل والی چٹانیں سائلورین دور کی، ہاں، ان میں زندگی ایک دم پیچیدہ شکل میں نظر آتی ہے۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ کچھ کیوں نہیں ملتا؟ جی، ڈارون نے خود مانا کہ یہ ایک سنگین مشکل ہے۔ ان کے پاس مطلب اس وقت کوئی حتمی جواب نہیں تھا، لیکن انہوں نے کچھ اندازے لگائے تھے۔ ہاں، انہوں نے کچھ مفروضے پیش کیے۔ ایک تو یہ کہ شاید سائلورین سے پہلے کی چٹانیں شدید گرمی اور دباؤ کی وجہ سے بدل گئی ہوں، میٹامورفزم ہو گیا ہو۔ اچھا، یا پھر وہ چٹانیں کسی ایسے بر اعظم پر تھیں جو اب سمندر کے نیچے ہے، گمشدہ بر اعظم سمجھ لیں۔ وہ پر اعتماد تھے کہ سائلورین سے پہلے زندگی کا ایک طویل دور گزرا ہے، بس اس کا ریکارڈ ہم تک نہیں پہنچا یا ابھی ملا نہیں۔ اور آخر میں انہوں نے اس ساری صورتحال کو سمجھانے کے لیے وہ کتاب والی مثال دی تھی، ہے نا؟ جی، وہ بہت خوبصورت تشبیہ ہے کہ ارضیاتی ریکارڈ ایک ایسی تاریخ کی کتاب ہے جو نامکمل ہے، اور ایک ایسی زبان میں لکھی گئی ہے جو خود بدلتی رہی ہے۔ اور ہمارے پاس اس کتاب کی صرف آخری جلد ہے۔ ہاں، وہ بھی پوری نہیں، اس آخری جلد کے بھی صرف چند ابواب، وہ بھی دنیا کے کچھ حصوں سے متعلق، اور ہر صفحے پر بس چند سطریں۔ بالکل، اور وہ بدلتی زبان کے الفاظ، وہ ان جانداروں کی بدلی ہوئی شکلیں ہیں جو ہمیں ملتی ہیں۔ یہ نامکمل پن ہی حقیقت ہے، یہی ڈارون کا نقطہ تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ باب 9 فوسل ریکارڈ کے اعتراض کا ایک بہت مضبوط جواب ہے۔ ڈارون یہ دکھا رہے ہیں کہ ریکارڈ کا نامکمل ہونا ارتقاء کے خلاف نہیں جاتا۔ جی نہیں، بلکہ یہ گہرے ارضیاتی وقت، زمین کی تبدیلیوں اور فوسل بننے کے مشکل عمل کا قدرتی نتیجہ ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم ایک مکمل ہر قدم دکھانے والے ریکارڈ کی امید رکھیں، ڈارون کہتے ہیں کہ ان بکھرے ہوئے ٹکڑوں میں جو بڑے پیٹرن، جو روابط نظر آتے ہیں، ان کو سمجھیں۔ بالکل، ارتقاء کوئی سیدھی لکیر نہیں، بلکہ ایک بہت پیچیدہ متحرک عمل ہے جو لاکھوں کروڑوں سال پر پھیلا ہوا ہے۔ تو یہ باب صرف ایک اعتراض کا جواب نہیں تھا، بلکہ اس نے مستقبل کے ماہرین ریاضیات کے لیے ایک طرح سے راستہ بھی دکھایا کہ اس نامکمل ریکارڈ کو کیسے پڑھنا اور سمجھنا ہے۔ جی ہاں، اس کی حدود کو بھی سمجھنا ہے اور اس میں چھپی معلومات کو بھی۔ اور آخر میں ایک سوچنے کی بات، اگر کبھی ہمیں وہ گمشدہ پری سائلورین دور کے بہت سے اچھی طرح محفوظ فوسل مل جائیں جیسا ڈارون نے سوچا تھا، ہاں، تو زندگی کی ابتدائی تاریخ کے بارے میں ہماری سمجھ کتنی بدل سکتی ہے؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔ خوش آمدید لرن ود حمزہ یعقوب میں۔ آج ہم چارلز ڈارون کی آن دی اوریجن آف اسپیشیز کے 10ویں باب میں گہرائی میں جا رہے ہیں۔ یہ باب ہے نامیاتی مخلوقات کی ارضیاتی جانشینی پر، یعنی
फॉसिल्स हमें वक्त के साथ जिंदगी के तसलसल के बारे में क्या बताते हैं? पिछली बार हमने रिकॉर्ड की नामुकम्मलत पर बात की थी। अब सवाल यह है कि इस अधूरे रिकॉर्ड में भी क्या अनवा के आने जाने का कोई खास तरीका, कोई पैटर्न नजर आता है? जी, और डार्विन के लिए ये बहुत अहम सवाल था। वो ये दिखाना चाहते थे कि ये पैटर्न्स उनके नजरिया इर्तिका यानी कुदरती इंतखाब की तायीद करते हैं। बिल्कुल। तो आज हम देखेंगे कि अनवा कैसे, आप कह लें, आहिस्ता आहिस्ता आती और जाती हैं। क्यों नई नस्लें पुरानी नस्लों से मिलती हैं, खास तौर पर एक ही इलाके में, और कैसे मैदूमियत और नई अनवा का बनना एक ही सिक्के के दो रुख हैं। हाँ, डार्विन का बुनियादी नुक्ता यही था कि ये सब एक सुस्त, बतदरीज, शाख तर शाख फैलने वाला अमल है, न कि कोई अचानक होने वाला मौजज़ा या तबाही। सही। तो शुरू करते हैं इस बात से कि नई अनवा कैसे जाहिर होती हैं। डार्विन का मुशाहिदा था कि ये बड़ा सुस्त अमल है, एक एक करके, और उनकी तब्दीली की रफ्तार भी वो मुख्तलिफ होती है। उन्होंने लिंगुला की मिसाल दी, वो कदीम सीपी। जी, ब्रैकियोपॉड। हाँ, वो आज के लिंगुला से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं, लेकिन इसी दौर के, मतलब सिलूरियन दौर के दूसरे मॉलस्क्स बहुत बदल चुके हैं। तो ये फर्क क्यों? ये डार्विन के नजरिए से बिल्कुल मुताबिकत रखता है। देखें, कोई अंदरूनी ताकत नहीं जो सबको एक रफ्तार से बदले। तब्दीली असल में बहुत आहिस्ता होती है। हर नौ की अपनी सलाहियत होती है बदलने की, यानी तगय्युर पजीरी। और कुदरती इंतखाब तभी काम करता है जब कोई फायदामंद तब्दीली आए, माहौल बदले, मुकाबला हो। तो अगर माहौल मुस्तहकम हो, मुकाबला कम हो, तो कोई नौ जैसे लिंगुला तवील अरसे तक वैसी ही रह सकती है। अच्छा। लेकिन जो अनवा मुकाबले की वजह से या बदलते माहौल की वजह से तब्दील नहीं हो पाती, वो अक्सर महदूम हो जाती हैं। और ये महदूमियत, ये भी एक बड़ा मौजू है। पहले ख्याल था कि शायद कोई बड़ी आफत आती होगी, सब खत्म। जी, जैसे कुवियर का ख्याल था। हाँ, लेकिन डार्विन कहते हैं कि नहीं, ये भी उमूमन एक सुस्त बतदरीज अमल है। उन्हें खुद हैरत हुई थी जब ला प्लाटा में उन्हें घोड़े का फॉसिल दांत मिला था, उन बड़े मादूम जानवरों, मेगाथीरियम वगैरह के साथ। बिल्कुल। वो सोच में पड़ गए कि अगर स्पेनी घोड़े इतनी तेजी से पूरे बरे आजम में फैल गए, तो ये असली मुकामी घोड़े क्यों खत्म हो गए? हाँ, ये शुरू में एक पहेली लगी, लेकिन फिर उन्होंने समझा कि वो फॉसिल घोड़ा एक अलग नौ थी और मादूमियत असल में कुदरती इंतखाब का ही नतीजा है। जब नई बेहतर अनवा आती हैं, वो पुरानी कमजोर अनवा की जगह ले लेती हैं, खासतौर पर अगर वो एक जैसे वसाइल के लिए मुकाबला कर रही हों। किसी नौ का नायाब होना अक्सर मादूमियत की पहली निशानी होती है। तो ये कोई राज नहीं, बल्कि जिंदगी की जिद्दोजहद का हिस्सा है। बिल्कुल। और जहां तक ट्रिलोबाइट्स या एमोनाइट्स की बात है, जो लगता है कि अचानक गायब हो गए, डार्विन के मुताबिक या तो रिकॉर्ड में लंबे वक्फे हैं या फिर कोई नई बहुत कामयाब नौ इतनी तेजी से फैली कि उसने दूसरों को खत्म कर दिया। एक और दिलचस्प चीज, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जिंदगी की शक्लें तकरीबन एक ही वक्त में बदलती नजर आती हैं। जैसे वो यूरोप की चौक फॉर्मेशन, जी, चाक का दौर, वैसे ही चट्टानें और वैसे ही फॉसिल्स, क्या कहते हैं, शुमाली अमेरिका तक में मिलते हैं। क्या ये किसी आलमी मंसूबे की तरफ इशारा है? देखिए, यहाँ एक ही वक्त का मतलब समझना जरूरी है। ये अर्जियाती वक्त है, लाखों साल। डार्विन की वजाहत ये थी कि जो अनवा पहले से कामयाब और फैली हुई हैं, उनमें नई बेहतर किस्में बनने का इम्कान ज्यादा होता है। जब ऐसी कोई गालिब नौ बदलती है, तो वो नई शक्ल तेजी से फैलती है और पुरानी शक्ल की जगह ले लेती है। अच्छा। ये समंदरी अनवा में ज्यादा वाज़ेह है, क्योंकि समंदर जुड़े हुए हैं। जमीन पर ये इतना सीधा नहीं होता, और रिकॉर्ड तो नामुकम्मल है ही। ठीक। अब आते हैं मैदूम और जिंदा अनवा के ताल्लुक पर। फॉसिल्स कैसे मौजूदा ग्रोहों के दरमियान वो खला को पुर करते हैं? जी, ये मुश्तरका नस्ब के नजरिए का एक अहम सबूत है। अगर सब एक ही शजरा नस्ब से हैं, तो कदीम फॉसिल्स को मौजूदा ग्रोहों को जोड़ना चाहिए। वो अक्सर बराह रास्त आबाओ अजदाद नहीं होते, लेकिन उनमें ऐसी खुसूसियात होती हैं जो मुख्तलिफ ग्रोहों के बीच की कड़ी लगती हैं। हर दौर के जानदार अपने से पिछले और अगले दौर के जानदारों के दरमियान एक तरह से दरमियानी हालत में होते हैं। और आखिर में वो कानून के एक ही इलाके में एक ही किस्म की अनवा एक दूसरे के बाद आती हैं। ऑस्ट्रेलिया में फॉसिल मार्सूपियल्स, आज भी मार्सूपियल्स। जनूबी अमेरिका में कदीम सुस्त रफ्तार जानवर।
जी, मेगाथेरियम वगैरह। और आज के सुस्त रफ्तार और आर्माडिलोज। इसकी सबसे अच्छी वजाहत विरासत ही है। एक इलाके के जानदार वहीं अपनी नस्ल छोड़ते हैं जो वक्त के साथ बदलती है। अगर माजी में बराए आजमों पर अलग अलग किस्म के जानदार थे तो उनके जानशीन भी अलग अलग होंगे। तो मेगाथेरियम आज के स्लॉथ का बराह रास्त बाप दादा नहीं? नहीं, बराह रास्त नहीं, लेकिन वो रिश्तेदार हैं। एक ही इलाके में रहने वाले मुश्तरका जद से निकले हैं। कुछ मैदूम हो गए, कुछ बच गए और बदल गए। तो खुलासा ये है कि बाबे 10 में डार्विन फुसिल रिकॉर्ड को बावजूद उसकी नामुकम्मलियत के इर्तका के सबूत के तौर पर पेश करते हैं। बिल्कुल, ये रिकॉर्ड बतदरीज तब्दीली, मैदूमियत और जानशीनी दिखाता है, जो कुदरती इंतखाब के जरिए इर्तका की कहानी सुनाता है। जिंदगी की तारीख एक मरबूत सिलसिला नजर आता है। जी हाँ, नई अनवा अपने आबाओ अजदाद से ही बनती हैं, माहौल और मुकाबले से तश्कील पाती हैं। ये आर्जियाती जानशीनियां हमें इन कानूनों की झलक दिखाती हैं। और आखिर में एक सवाल जो जहन में आता है, अगर ये रिकॉर्ड वाकई इतना नामुकम्मल है तो मुस्तकबिल में क्या ऐसे लिंक्स, ऐसे फोसिल्स मिल सकते हैं जो किसी खास इर्तकाई रास्ते की हमारी समझ को बिल्कुल बदल दें, भले बुनियादी उसूल वही रहें? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है और यही चीज पेलियंटोलॉजी को हमेशा अहम बनाए रखती है। खुशामदीद। आज हम चार्ल्स डार्विन की किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के 11वें चैप्टर का जायजा ले रहे हैं। ये जोग्राफियाई तकसीम यानी जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है। जी हाँ। और ये चैप्टर एक बहुत बुनियादी सवाल उठाता है कि आखिर दुनिया भर में ये पौधे और जानवर इस तरह से फैले हुए क्यों हैं जैसे वो हैं। हाँ, और ये कोई मामूली सवाल नहीं है। आप देखें, क्यों एक जैसी आबो हवा वाले इलाके जैसे अमेरिका और अफ्रीका के कुछ हिस्से ले लें, वहाँ बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के जानदार मिलते हैं। सही। लेकिन फिर दूसरी तरफ एक ही बरे आजम पर चाहे माहौल कितना ही अलग क्यों न हो, वहाँ के जानदार अक्सर आपस में करीबी रिश्ता रखते हैं। ये एक पहेली थी जिसे डार्विन ने सुलझाने की कोशिश की। तो पहली बात जो डार्विन ने वाजे की वो ये थी कि सिर्फ आबो हवा या माहौल वो सब कुछ नहीं है। बिल्कुल। अगर ऐसा होता तो अमेरिका, जहां हर तरह का माहौल है, वहां के जानदार यूरोप या अफ्रीका के उन्हीं जैसे माहौल वाले जानदारों से इतने मुख्तलिफ ना होते। बिल्कुल सही कहा। और ये बात तो आप देखें, जुनूबी निस्फ कोरा में और भी ज्यादा नुमाया है। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और जुनूबी अमेरिका के कुछ इलाके जो तकरीबन एक ही लैटिट्यूड पर हैं, माहौल भी काफी मिलता जुलता है। हाँ, मगर वहाँ की फौना और फ्लोरा यानी जानवर और पौधे, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। इससे साफ पता चलता है कि आबो हवा के अलावा कोई और बड़ी वजह है जो जानदारों के फैलाव को कंट्रोल कर रही है। अगर आबो हवा नहीं तो फिर वो बड़ी वजह क्या है जिस पर डार्विन ने जोर दिया? वो है कुदरती रुकावटें यानी नेचुरल बैरियर्स। अच्छा। समुंदर, ऊंचे पहाड़ी सिलसिले, वसी सहरा, ये चीजें जानदारों को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाने नहीं देती, रोक लेती हैं। बिल्कुल। इसी वजह से मुख्तलिफ इलाकों की आबादियां अलग थलग होकर वक्त के साथ मुख्तलिफ सिमतों में इवॉल्व होती हैं। इसकी कोई खास मिसाल जो इस नुक्ते को वाज़ेह करे? कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल? पैनमा का इस्थमस एक बेहतरीन मिसाल है। वो तंग जमीनी पट्टी जो शमाली और जुनूबी अमेरिका को मिलाती है। जी। समुद्री फासला बहुत कम है, लेकिन वहाँ के समुद्री जानवर, मछलियाँ, सीपियाँ, केकड़े, दोनों तरफ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अच्छा। ये छोटी सी जमीनी रुकावट समुद्री दुनिया के लिए एक दीवार की तरह काम कर रही है। ये दिखाता है कि ये बैरियर्स कितने ताकतवर हो सकते हैं। लेकिन अगर रुकावटें जानदारों को अलग करती हैं तो फिर ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती कि एक ही बर्रे आजम के जानदार, चाहे वो अलग अलग माहौल में हों, फिर भी अक्सर एक जैसे लगते हैं? डार्विन इस अफिनिटी या कुर्बत को कैसे समझाते हैं? हाँ, ये दिलचस्प नुक्ता है। डार्विन के लिए ये अफिनिटी इस बात का सबूत थी कि एक ही इलाके के जानवर आम तौर पर एक मुश्तरका अजदाद यानी कॉमन एंसेस्टर से आए हैं। अच्छा। जैसे जुनूबी अमेरिका के तमाम रोडेंट्स, चूहे की किस्म के जानवर, चाहे वो पहाड़ों में रहें या मैदानों में, उनमें एक खास अमेरिकन टाइप है।
ये कुर्बत महज इत्तफाक नहीं, बल्कि ये विरासत, इनहेरिटेंस का नतीजा है। ये गहरा कुदरती बंधन जो डार्विन कहते हैं, इसका मतलब है कि वो सब एक ही एवोल्यूशनरी सिलसिले से जुड़े हैं। तो इसका मतलब है कि हर स्पीशीज एक ही जगह पैदा हुई और फिर वहां से फैली, सिंगल सेंटर ऑफ क्रिएशन वाली बात। डार्विन को ज्यादा रुझान इसी तरफ था। अगर हर स्पीशीज कई जगहों पर खुद ब खुद पैदा हो सकती, तो फिर ये रुकावटें इतनी अहम क्यों होती? सही। और क्यों हर मुनासिब माहौल में दुनिया भर में एक जैसी स्पीशीज नहीं मिलती? मसलन ऑस्ट्रेलिया में कैंगरू क्यों है, यूरोप जैसे मैमल्स क्यों नहीं, जबकि माहौल तो कई जगह मुनासिब है। ठीक। तो ये सिंगल सेंटर का नजरिया हिजरत यानी माइग्रेशन और फैलाव यानी डिस्पर्सल के कुदरती अमल से ज्यादा मुताबिकत रखता है। फिर सवाल ये उठता है कि ये डिस्पर्सल या फैलाव होता कैसे है, खास तौर पर समंदर पार या ऊंचे पहाड़ों के इस पार? ये तो बहुत मुश्किल लगता है। ऊपर नीचे होना। फिर कुदरती वसाइल हैं जैसे समंदरी लहरें। डार्विन ने खुद तजुर्बात किए थे इस पर। ओह, वाकई? जी हाँ, उन्होंने बीजों को नमकीन पानी में डाला और देखा कि कितनी देर जिंदा रहते हैं। और हैरत के बात है, 87 में से 64 किस्म के बीज 28 दिन बाद भी उग गए। कुछ तो 137 दिन तक जिंदा रहे। 137 दिन? जी, तो सोचे कि समुद्री लहरें बीजों को कितनी दूर ले जा सकती हैं। और क्या जानदार खुद भी इसमें हिस्सा लेते हैं? हाँ बिल्कुल, परिंदे एक अहम जरिया हैं। उनके पैरों से मिट्टी चिपक कर दूर जा सकती है, जिसमें नन्हे बीज हो सकते हैं। अच्छा। वो फल या बीज खा लेते हैं जो उनके पेट में हजम हुए बगैर बचकर कहीं और खारिज हो जाते हैं। यहाँ तक कि बर्फानी तूदे, आइसबर्ग्स, वो भी सर्द जमानों में मिट्टी, पत्थर और बीज अपने साथ लेकर दूर दराज सफर कर सकते हैं। आपने सर्द जमानों का जिक्र किया। डार्विन ने ग्लेशियल पीरियड या बर्फानी दौर को भी इस पहेली का एक अहम हिस्सा करार दिया, है ना? बहुत अहम, बहुत ज्यादा अहम। ग्लेशियल पीरियड उन मुश्किल सवालों का जवाब देता है कि कैसे एक जैसी या मिलती जुलती ठंडी आबोहवा वाली स्पीशीज आज दूर दराज पहाड़ों की चोटियों पर, जैसे एल्प्स और शुमाली अमेरिका के व्हाइट माउंटेन्स, और इंतहाई शुमाल यानी आर्कटिक और जुनूब यानी अंटार्कटिक इलाकों में पाई जाती हैं। ये कैसे हुआ? जब बर्फानी दौर में मौसम बहुत सर्द हुआ तो ये स्पीशीज जुनूब की तरफ और नीचे मैदानों में फैल गईं। ओके। फिर जब मौसम दोबारा गर्म हुआ तो ये वापस शुमाल की तरफ और ऊंचाइयों पर चली गईं, जहां वो आज अलग थलग आइसोलेटेड पॉपुलेशंस की सूरत में मिलती हैं। ये एक तरह से वक्त में सफर की कहानी है जो उनकी तकसीम बयान करती है। तो इस सब का खुलासा ये हुआ कि जानदारों की दुनिया में ये जो तकसीम है, ये कोई रैंडम चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इनकी एवोल्यूशनरी तारीख, विरासत, हिजरत की सलाहियत, कुदरती रुकावटों का सामना और जमीन पर आने वाली बड़ी तब्दीलियां जैसे ग्लेशियल पीरियड, इन सब का एक मिलाजुला, एक पेचीदा नतीजा है। बिल्कुल। ये साफ करता है कि कोई स्पीशीज किसी जगह सिर्फ इसलिए नहीं होती कि वहां का माहौल उसके लिए परफेक्ट है, बल्कि इसलिए कि उसके अजदाद वहां तक पहुंचने में कामयाब हुए और फिर वहां पनप सके। और ये तमाम शवाहिद, ये सारी बातें डार्विन के बुनियादी नजरिए डिसेंट विद मॉडिफिकेशन यानी मुश्तरका अजदाद से वक्त के साथ तब्दीली के जरिए नई सूरतें बनना, इसको जबरदस्त तकवीत देते हैं। ये वाकई जिंदगी के फैलाव की एक गहरी और काफी पेचीदा तस्वीर है जो माजी से जुड़ी है। जी। लेकिन ये सोचने पर मजबूर भी करती है, जिस तरह ग्लेशियल पीरियड ने कुदरती तौर पर जिंदगी की तकसीम पर इतना गहरा असर डाला। क्या आज इंसानी सरगर्मियां जो कुदरती रुकावटों को तोड़ भी रही हैं और नई बना भी रही हैं, और क्लाइमेट चेंज, क्या ये चीजें मुस्तकबिल में जिंदगी के फैलाव और एवोल्यूशन पर इसी तरह के या शायद उससे भी बड़े असरात डाल रही हैं? ये एक सवाल है जिस पर गौर करना लाजमी है। आज हम चार्ल्स डार्विन की ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के एक और बहुत दिलचस्प बाब 12 पर बात कर रहे हैं। जी, जोग्राफियाई तकसीम तसलसल। ये वाकई गहराई में जाता है कि दुनिया में जानदार कहाँ पाए जाते हैं और क्यों। बिल्कुल। और ये सिर्फ ये नहीं कि कौन कहाँ है, बल्कि ये कि ये मौजूदगी इर्तिका के लिए इतना जबरदस्त सबूत कैसे है। सही। डार्विन यहाँ खास तौर पर 2 चीजों को देखती हैं। एक तो मीठे पानी की अनवा
जो हैरत अंगेज तौर पर दूर दूर तक फैली हुई हैं, हाँ, ये बड़ा अजीब लगता है। और दूसरी समुद्री जजीरों के वो जानदार जो बिल्कुल मुनफरिद हैं, कहीं और नहीं मिलते। तो सवाल ये बनता है कि जमीन और समंदर जैसी बड़ी रुकावटें हैं, फिर भी अनवा कैसे फैलती हैं? और जजीरों की जिंदगी बर्रे आजमों से इतनी मुख्तलिफ क्यों हो जाती है? जी, डार्विन का असल मौक़िफ़ यही है कि ये जो पैटर्न्स हमें नजर आते हैं, ये सिर्फ कह देने से नहीं कि बस ऐसे ही तख्लीक हो गए, ये उससे ज्यादा पेचीदा है। तो वो कहते हैं कि ये इर्तिका और हिजरत की कहानी है, वक्त के साथ साथ। बिल्कुल, लाखों सालों पर फैली हुई हिजरत, फिर माहौल के मुताबिक ढलना और जोग्राफियाई रुकावटों का किरदार, ये सब मिलकर एक साइंसी वजाहत देते हैं। चलें मीठे पानी वाली बात से शुरू करते हैं। ये वाकई हैरान कौन है कि मीठे पानी के कीड़े या सीपियां जो समंदर में तो मर जाते हैं, वो अलग अलग बर्रे आजमों पर कैसे? हाँ, डार्विन ने खुद ब्राजील में ये देखा कि वहां के मीठे पानी के कुछ कीड़े और खोल बिल्कुल ब्रिटानिया जैसे थे, जबकि वहां की जमीनी मखलूक बिल्कुल अलग थी। तो इसकी क्या वजाहत हो सकती है? देखें, डार्विन कई इम्कानात बताती हैं। एक तो ये कि ये अनवा अक्सर छोटी छोटी छलांगे लगाती हैं, मतलब एक तालाब से दूसरे तक। शायद परिंदे मदद करते हों। अच्छा। फिर कुछ हादसाती तरीके भी हैं, जैसे कभी कोई भगौड़ा आया और मछलियों के अंडे उड़ाकर कहीं और ले गया, या जमीन की सतह में तब्दीली आई, दरियाओं के रास्ते बदल गए, आपस में मिल गए। और वो बत्तखों वाला मुशाहिदा, वो तो कमाल था। हाँ, उन्होंने देखा कि बत्तख की पीठ पर वो जो छोटे छोटे आबी पौधे डकवीड लगे होते हैं, वो एक एक्वेरियम से दूसरे में गए तो साथ में नन्ही सेपियां भी ले गए। सच में? जी, और फिर तजर्बा किया तो पता चला कि वो नन्ही सेपिया बत्तख के गीले पैरों से चिमटकर, आप यकीन करें, 12 से 20 घंटे जिंदा रह सकती हैं। 20 घंटे? ये तो सैकड़ों मील का सफर बनता है अगर बत्तख उड़ रही हो। बिल्कुल, तो ये एक मुमकिन रास्ता है। और पौधों के बीजों का तो मामला और भी दिलचस्प है। वो कैसे? आबी परिंदे जब वो तालाब के किनारे गीली मिट्टी में चलते हैं तो उनके पैरों या चोंच पर मिट्टी लग जाती है। उस मिट्टी में बीज हो सकते हैं। अच्छा। डार्विन का वो मशहूर तजुर्बा है ना कि तालाब के किनारे से सिर्फ 3 चम्मच गीली मिट्टी ली। हाँ हाँ, याद आया। और उसे 6 महीने में अंदाजा लगाएं 537 पौधे हो गए। ला हौला वला कुव्वता, सिर्फ 3 चम्मच मिट्टी से? जी, और एक और तरीका भी है। कुछ बीज मछलियां खा लेती हैं, फिर बगले जैसी शिकारी परिंदे उन मछलियों को खाते हैं। और फिर मीलों दूर किसी और तालाब पर जाकर बैठ करते हैं? बिल्कुल, और हैरत अंगेज तौर पर वो बीज परिंदे के पेट से गुजरने के बाद भी उगने की सलाहियत रखते हैं। वाह, तो कुदरत ने बड़े अनोखे रास्ते निकाले हैं सफर के। सही, लेकिन अब अगर हम समंदर पार जजीरों को देखें तो वहां कहानी बिल्कुल अलग है। हाँ, वहाँ अनवाह कम होती हैं, लेकिन जो होती हैं वो अक्सर एंडेमिक होती हैं, मतलब सिर्फ वहीं पाई जाती हैं। इसकी वजह है तन्हाई, आइसोलेशन। जब कोई परिंदा या कोई बीज किसी दूर दराज जजीरे पर पहुंच जाता है तो वो एक तरह से कैद हो जाता है, बाकी दुनिया से कट जाता है। जी, फिर वक्त गुजरने के साथ वहां के माहौल के मुताबिक ढलते ढलते वो इतना बदल जाता है कि एक नई बिल्कुल मुनफरिद नौ बन जाती है। गैलापागोस के फिंचेस इसकी बेहतरीन मिसाल है। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो कुछ ग्रोहों की मुकम्मल गैर मौजूदगी है। मसलन दूर दराज समुद्री जजीरों पर आपको मकामी मेंढक, टोड या न्यूट क्यों नहीं मिलते? हालांकि अगर इंसान उन्हें वहां छोड़ दे तो वो आराम से रहते हैं। अच्छा सवाल है। इसी तरह चमगादड़ों को छोड़कर जो उड़ सकती हैं, वहां मकामी जमीनी मुमालिया जानवर क्यों नहीं होते? इसका जवाब डार्विन फैलाव की सलाहियत से जोड़ती हैं। मेंढक और उनके अंडे वो समंदरी पानी में फौरन मर जाते हैं, तो उनके लिए समंदर पार करना तकरीबन नामुमकिन है। अच्छा, ये वजह है। और जमीनी मुमालिया जानवर, जाहिर है, वो भी तैरकर इतने लंबे फासले तय नहीं कर सकते। समंदर उनके लिए एक बहुत बड़ी रुकावट है। लेकिन चमगादड़ें उड़ सकती हैं? बिल्कुल, इसीलिए चमगादड़ें अक्सर जजायर पर पहुंच जाती हैं और वहां पहुंचकर फिर वो भी मुनफरिद अनवा में तब्दील हो जाती हैं। और फिर वो सबसे अहम नुक्ता कि जजीरे के जानदार चाहे कितने ही मुनफरिद क्यों ना हो, उनमें करीबी बर्रे आजम की झलक नजर आती है। जी, ये बहुत अहम मुशाहिदा है। गैलापागोस के जानवर और पौधे, उनमें आपको जनूबी अमेरिका का रंग नजर आएगा, जबकि केप वर्दे जजायर जो अफ्रीका के करीब हैं, वहां की जिंदगी पर अफ्रीका की छाप है।
تو یہ اس خیال کو رد کرتا ہے کہ ہر جگہ الگ الگ تخلیق ہوئی؟ بالکل، یہ ایک بہت مضبوط دلیل ہے اس کے خلاف۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جزائر پر زندگی باہر سے آئی، زیادہ تر قریبی بر اعظم سے، اور پھر وہاں آ کر تنہائی میں وہ تبدیل ہو گئی۔ اسی لیے گلاپیگوس اور کیپ وردے، جن کے طبعی حالات مطلب آتش فشانی زمین، آب و ہوا کافی ملتے جلتے ہیں، ان کی زندگی بالکل مختلف ہے کیونکہ ان کے آباد کار مختلف جگہوں سے آئے تھے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ جو جغرافیائی تقسیم ہے یہ بے ترتیب نہیں ہے، یہ ارتقاء کی ایک زندہ تاریخ ہے۔ بالکل، یہ لاکھوں سالوں کی کہانی ہے، ہجرت کی، تنہائی کی، موافقت کی، تبدیلی کی، میٹھے پانی کی انواع کا پھیلاؤ، جزائر کی منفرد لیکن بعض اوقات نامکمل سی زندگی اور ان کا قریبی بر اعظموں سے تعلق، یہ سب چیزیں ارتقاء کے نظریے سے ہی بہترین طور پر سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ واقعی زندگی کے بارے میں ہمارے جامد تصورات کو چیلنج کرتا ہے، یہ ایک متحرک تصویر پیش کرتا ہے۔ جی، جہاں انواع مسلسل بدل رہی ہیں، پھیل رہی ہیں، اور زمین کا بدلتا ہوا منظرنامہ اس عمل پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ تو جغرافیہ صرف ایک سٹیج نہیں ہے جس پر زندگی کا ڈرامہ ہو رہا ہے، بلکہ یہ خود اس ڈرامے کا ایک اہم کردار ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں آج کے دور کے لیے ایک اہم سوال کی طرف بھی لاتا ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، جس طرح ماضی میں زمین کی سطح اور آب و ہوا میں تبدیلیوں نے زندگی کی تقسیم کو شکل دی، تو آج ہم جو اتنی تیزی سے ماحولیاتی اور جغرافیائی تبدیلیاں لا رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، وہ مستقبل میں انواع کی عالمی تقسیم کو کیسے کس طرح نہیں شکل دیں گی؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے اور غور طلب ہے۔ خوش آمدید لرن ود حمزہ یعقوب یوٹیوب چینل پر۔ آج ہم چارلز ڈارون کی کتاب آن دی اوریجن آف اسپیشیز کے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس گفتگو میں ہم باب 13 کا جائزہ لے رہے ہیں۔ عنوان ہے جانداروں کے باہمی تعلقات، شکلیات، جینیات اور ناکارہ اعضاء۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ کھوج ہے نا، تمام جانداروں کے درمیان گہرے ساختی روابط کی۔ جی بالکل، یہ باب واقعی بہت اہم ہے۔ تو اس باب میں ڈارون اصل میں کن چیزوں کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جیسے کچھ ساختیں ہیں جو بالکل مختلف کام کرتی ہیں، لیکن وہ پھر بھی مشترکہ جد امجد کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ہاں بالکل، وہ ایسی ہم نسل ساختوں، ہومولوگس سٹرکچرز کی بات کرتے ہیں، اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ شکلیات یعنی جسمانی ساخت کا مطالعہ کیسے ہمیں ارتقائی رشتوں کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اچھا، اور وہ جینین والی بات بھی تھی کہ مختلف جانوروں کے بچے شروع میں بہت ملتے جلتے ہیں۔ جی، جینیٹک مماثلتیں یہ بہت حیران کن ہے، اور پھر وہ ناکارہ اعضاء جیسے انسان کا اپینڈکس یا ویل میں وہ پچھلی ٹانگوں کی ہڈیاں، ان کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ سب ملا کر وہ زندگی کی درجہ بندی کو بھی ایک نئے زاویے سے دیکھتے ہیں، مطلب صرف خانوں میں بانٹنا نہیں۔ بالکل، وہ اسے ایک متحرک رشتے کے طور پر دیکھتے ہیں جو نسل در نسل تبدیلی کے ساتھ بنتا ہے، جامد نہیں ہے۔ صحیح۔ ڈارون کا اصل کمال یہی تھا کہ انہوں نے دکھایا کہ یہ سارے نمونے، ساخت، نشوما، باقی ماندہ حصے، ان سب کی بہترین وضاحت ارتقاء سے ہوتی ہے، کسی خاص ڈیزائن یا الگ الگ تخلیق سے نہیں۔ تو آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ضروری ہے تاکہ سمجھ سکیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں کیسے زندگی کی ایک بڑی جڑی ہوئی کہانی سناتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم جانداروں کو گروہوں میں بانٹتے ہیں جیسے ممالیہ، پرندے وغیرہ، تو کیا یہ بس ہماری اپنی سہولت کے لیے ہے؟ نہیں، یہ محض سہولت کی بات نہیں ہے۔ جیسے ہم آسمان پر تاروں کے جھرمٹ بنا لیتے ہیں نا، ویسا نہیں ہے۔ ڈارون نے واضح کیا کہ قدرتی نظام اصل میں جانداروں کے حقیقی خونی رشتوں کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی نزول کی قربت۔ نزول کی قربت یعنی نسل کا تعلق؟ جی، حقیقی رشتہ داری۔ یہ درجہ بندی بنیادی طور پر ایک خاندانی شجرہ بنانے جیسی کوشش ہے جو وقت کے ساتھ آنے والی تبدیلیوں کی وجہ سے کبھی کبھی تھوڑی چھپ جاتی ہے۔ اچھا، تو درجہ بندی اصل میں نسلوں کا ریکارڈ ہے۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہوئی، لیکن کیا درجہ بندی کے لیے جسم کی تمام خصوصیات ایک جیسی اہم ہوتی ہیں؟ مطلب کیا دل یا پھیپھڑوں جیسی ضروری چیزیں ہمیشہ زیادہ اہم نہیں ہونی چاہیے؟
हैरत अंगेज तौर पर नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी बज़ाहिर गैर अहम नजर आने वाली चीजें, जैसे वो नाकारा या छोटे रह गए आज़ा, दर्जाबंदी के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। वाकई? ऐसा क्यों? क्योंकि वो अक्सर मुश्तरका जिद्द अमजद की ऐसी निशानियां होती हैं जो फ़आल आज़ा में तब्दीलियों की वजह से शायद वाज़े ना रहें। इसी तरह जिनीन की खुसूसियात, वो अक्सर बालिग हालत की खुसूसियात से ज्यादा गहरे और पुराने ताल्लुकात जाहिर करती हैं। तो जरूरी नहीं कि जो उज़्व जिंदगी के लिए सबसे अहम हो वही ताल्लुक समझने के लिए भी सबसे अहम हो। जी बिल्कुल। अच्छा, तो फिर शक्लियात या जिसे डार्विन साख्त की इकाई कहते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक ही बड़े ग्रुप यानी क्लास के जानदार, चाहे वो बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल में रहते हों, उनकी आदतें मुख्तलिफ हों, उनके जिस्म एक ही बुनियादी नक्शे पर बने होते हैं। एक ही नक्शा? मिसाल दे सकते हैं? जी, सबसे मशहूर मिसाल, इंसान का हाथ चीजें पकड़ने के लिए, चमगादड़ का पर उड़ने के लिए और डॉल्फिन या पोर्पुइस का फिन तैरने के लिए। बाहर से देखें तो कितने मुख्तलिफ हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर उनकी हड्डियों की तरतीब वो एक जैसी है। अच्छा, वही हड्डियां मुख्तलिफ कामों के लिए ढल गई हैं। बिल्कुल। ये ऐसा है जैसे कुदरत ने एक ही बुनियादी औजार को थोड़ा बहुत बदलकर मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल किया हो, और ये चीज अलग अलग तख्लीक के बजाय मुश्तरका जिद्द अमजद से तब्दीली के साथ विरासत मिलने का बहुत जबरदस्त सबूत है। ये हड्डियों वाली मिसाल तो वाकई हैरानकुन है। और आपने जनीन का जिक्र किया था, क्या ये मुमासलतें वहां भी नजर आती हैं? जी हाँ, और ये शायद सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं चौंका देने वाली बात है। बहुत मुख्तलिफ किस्म के जानवर जैसे मछली, छिपकली, परिंदे और ममालिया जानवर, उनके जनीन अपनी नशोनुमा के बिल्कुल इब्तिदाई मराहिल में एक दूसरे से बेहद मिलते जुलते हैं। सबके? ये तो कमाल है। जी, ये गहरी मुमासलत उनके मुश्तरका माजी की तरफ इशारा करती है। अक्सर जनीन में ऐसी साख्तें नजर आती हैं जो उनके कदीम आबाओ अजदाद में थीं, लेकिन बालिग होने तक वो या तो बदल जाती हैं या गायब हो जाती हैं। अच्छा, तो बच्चे अपने परखों की झलक दिखाते हैं एक तरह से? हाँ, कुछ ऐसा ही। डार्विन की वजाहत ये थी कि जो तब्दीलियां जिंदगी में बाद में आती हैं, वो अमूमन उसी उम्र में विरासत में मिलती हैं। इस वजह से इब्तदाई जनीन अपने दौर के जद्दे अमजद से ज्यादा मुशाहिबत रखता है। ये सब समझ आता है, लेकिन फिर इन नाकारा आज़ा या रूडिमेंट्री ऑर्गन्स का क्या जवाब है जो बज़ाहिर बिल्कुल बेकार लगते हैं? जैसे आपने कहा, व्हेल मछली के बच्चे में दांत जो कभी मसूड़ों से बाहर ही नहीं आते, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? ये बेहतरीन सवाल है, और डार्विन के लिए ये एक बहुत अहम सबूत था। ये आज़ा, जैसे वेल के जनीन में दांत या कीवी जैसे परिंदों के पर जो उड़ नहीं सकते, या कुछ कीड़ों के पर जो बाहर निकल ही नहीं पाते, ये सब इर्तिकाई तारीख की निशानियां या बाकियात हैं। बाकियात मतलब पुराने वक्तों की यादगार? जी, ये उन आबाओ अजदाद से विरासत में मिले हैं जिनमें ये आज़ा मुकम्मल तौर पर काम करते थे। वक्त के साथ शायद इस्तेमाल ना होने की वजह से या कुदरती इंतखाब के जरिए, क्योंकि वो गैर जरूरी या शायद नुकसानदेह हो गए थे, ये कम होते होते बस निशानी के तौर पर रह गए।
हाँ, कुछ ऐसा ही। डार्विन की वजाहत ये थी कि जो तब्दीलियां जिंदगी में बाद में आती हैं वो अमूमन उसी उम्र में विरासत में मिलती हैं। इस वजह से इब्तिदाई जनीन अपने दौर के जद्दे अमजद से ज्यादा मुशाहिबत रखता है। ये सब समझ आता है, लेकिन फिर इन नाकारा आज़ा या रूडमेंट्री ऑर्गन्स का क्या जवाब है जो बज़ाहिर बिल्कुल बेकार लगते हैं? जैसे आपने कहा, व्हेल मछली के बच्चे में दांत जो कभी मसूड़ों से बाहर ही नहीं आते, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? ये एक बेहतरीन सवाल है और डार्विन के लिए ये एक बहुत अहम सबूत था। ये आज़ा जैसे व्हेल के जनीन में दांत या कीवी जैसे परिंदों के पर जो उड़ नहीं सकते या कुछ कीड़ों के पर जो बाहर निकल ही नहीं पाते, ये सब इर्तिकाई तारीख की निशानियां या बाकियात हैं। बाकियात मतलब पुराने वक्तों की यादगार? जी, ये उन आबाओ अजदाद से विरासत में मिले हैं जिनमें ये आज़ा मुकम्मल तौर पर काम करते थे। वक्त के साथ शायद इस्तेमाल ना होने की वजह से या कुदरती इंतखाब के जरिए, क्योंकि वो गैर जरूरी या शायद नुकसानदेह हो गए थे, ये कम होते होते बस निशानी के तौर पर रह गए। ओ, इनका कोई मकसद नहीं, बस तारीख का हिस्सा है। बिल्कुल। उनकी मौजूदगी को नस्ल दर नस्ल तब्दीली के साथ विरासत से आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन अगर ये माने कि हर जानदार को खास तौर पर बनाया गया है तो ये समझाना बहुत मुश्किल है कि ऐसा उज़ू क्यों बनाया गया जो कभी इस्तेमाल ही ना हो। ये पुराने औजारों की तरह हैं जो दादा के गैराज में पड़े हैं, अब इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन बताते हैं कि वो पहले क्या करते थे। वाह, क्या मिसाल है! तो गोया दर्जाबंदी के तरीके, जिस्मानी साख्त में मुमासलतें, जनीन की नश्वोनुमा के अंदाज और ये नाकारा समझे जाने वाले हिस्से, ये सब मिलकर एक ही कहानी सुना रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये तमाम शवाहिद एक साथ मिलकर एक बहुत ही मरबूत और ताकतवर तस्वीर पेश करते हैं कि तमाम जानदारों का आपस में गहरा ताल्लुक है। वो मुश्तरका आबाओ अजदाद से आए हैं और वक्त के साथ उनमें तब्दीलियां आई हैं। तो जिंदगी एक दरख्त की तरह है जिसकी शाखें एक ही तने से निकली हैं। बिल्कुल सही, ना कि अलग अलग बेरब्त तख्लीकात का मजमुआ। आखिर तक हमारे साथ रहने का शुक्रिया। ये बाब वाकई जाहिर करता है कि तमाम जिंदगी कितनी गहराई से एक दूसरे से जुड़ी हुई है, चाहे वो मुश्तरका जिस्मानी साख्तों के जरिए हो, जिनीनी नशोनुमा या वो नाकारा आज़ा। डार्विन एक मजबूत दलील पेश करते हैं कि जानदार एक मुश्तरका दरख्त की शाखें हैं, ना कि अलग अलग तख्लीकात। जी, और कुदरती दुनिया जैसा कि वो दिखाते हैं वो अपनी तारीख का एक रिकॉर्ड है जो उसकी शक्लों, उसके अफ़ाल और यहाँ तक कि उसके भूले हुए हिस्सों में लिखा हुआ है। इन ताल्लुकात को समझना हमें जिंदगी की वहदत और इस बारे में गहरी बसीरत फराहम करता है कि अर्तका आज हमारे देखे जाने वाले तनव्वुं को किस तरह तश्कील देता रहता है। कमेंट्स में अपने ख्यालात से जरूर आगाह करें और इस इर्तिकाई शाहकार के आखिरी बाब में इख्तितामी गौर व फिक्र के लिए हमारे साथ रहिएगा। लर्न विद हमजा याकूब यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज हम चार्ल्स डार्विन की मशहूर ज़माना किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के बिल्कुल आखिरी बाब पर पहुंच गए हैं। जी, 14वां बाब, खुलासा और नतीजा। बिल्कुल, ये वो जगह है जहां डार्विन साहब अपने पूरे नजरिए को समेटते हैं, है ना? सही कहा आपने। ये बाब एक तरह से क्या कहते हैं, पूरी किताब का निचोड़ है। डार्विन यहाँ वो तमाम शवाहिद इकट्ठे करते हैं जो उन्होंने पेश किए हैं और अपने इस इनकलाबी नजरिए की बुनियाद को, यानी उसके मरकज को दोबारा बयान करते हैं। और वो बुनियाद क्या थी? कि तमाम जानदार अनवा जी, कि तमाम जानदार अनवा वक्त के साथ साथ मुश्तरका आबाओ अजदाद से निकली हैं और ये सब हुआ कुदरती इंतखाब यानी नेचुरल सिलेक्शन के अमल के जरिए। अच्छा, कुदरती इंतखाब यानी वो अमर जिसमें जो जानदार माहौल के लिए ज्यादा मौजू खुसूसियात रखते हैं वो ज्यादा कामयाब होते हैं और अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं। ठीक, बिल्कुल। वो इस बात में फिर से बका की जद्दोजहद यानी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस को बुनियाद बनाते हैं और दिखाते हैं कि कैसे जानदारों में कुदरती तगीरात वेरिएशंस होते हैं। फिर वो तगीरात विरासत में मिलते हैं, इनहेरिटेंस, और जो तगीरात माहौल में कामयाबी दिलाते हैं वही नस्ल दर नस्ल मुआफकत, एडेप्टेशन का बायस बनते हैं। यानी जानदार अपने माहौल से बेहतर तौर पर हम आहंग हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो ये सिर्फ ये नहीं था कि जानदार बदलते हैं, बल्कि इस तब्दीली का एक पूरा क्या कहें मैकेनिज्म वो पेश कर रहे थे। सही। लेकिन क्या इस वक्त उनके पास
ठोस सबूत थे ये दिखाने के लिए कि ये मुआफ़क़त वाकई नस्ल दर नस्ल होती है? बहुत अच्छा सवाल है। डार्विन ने इस बाब में मुख्तलिफ शोबों से दलाइल इकट्ठे किए, जैसे फॉसिल्स। अगरचे वो मानते थे कि रिकॉर्ड नामुकम्मल है, लेकिन फिर भी वो माजी की जिंदगियों की झलक दिखाते थे। अच्छा। फिर एम्ब्रियोलॉजी यानी जनेन का मुताला, वो दिखाता है कि मुख्तलिफ अनवा के इब्तदाई मराहिल में कैसी मुमासलतें हैं। और मोर्फोलॉजी यानी साख्त का मुतालिया, ये मुश्तरका बनावट की तरफ इशारा करता है, चाहे अज़ा का काम मुख्तलिफ ही क्यों ना हो। और जोग्राफियाई तकसीम भी तो थी, ठीक? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे वो गैलापागोस जज़ायर की फिंचस की मिसाल, कैसे एक ही जद से आने वाले परिंदों की चोंचें मुख्तलिफ जजीरों पर खुराक के हिसाब से बिल्कुल मुख्तलिफ हो गईं। ये तब्दीली के साथ नस्ल यानी डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन का कितना वाज़ेह सबूत था। यकीनन। और यहीं पर कुदरती इंतखाब का नजरिया जिंदगी की इस नाकाबिले यकीन पेचीदगी और तनव्वो की एक जामिया वजाहत फराहम करता है। ये बताता है कि किस तरह सादा आगाज से बतदरीज तब्दीलियों और मुवाफिकत के जरिए जिंदगी के इतने मुतनव्वे और पेचीदा रूप सामने आए। जरा सोचे, एक सादा से आगाज से आज की ये सारी बायोडाइवर्सिटी। जी। कमाल की बात ये भी है, और मुझे ये हमेशा मुतासिर करता है कि डार्विन ने खुलकर माना कि अभी सब जवाबात नहीं है, जैसे तगय्युरात कहाँ से आते हैं या फॉसिल रिकॉर्ड मुकम्मल क्यों नहीं। कुछ लोग इसे कमजोरी समझ सकते थे, लेकिन ये उनकी इल्मी दियानतदारी थी। ये कोई कमजोरी नहीं थी मेरे ख्याल में, बल्कि इससे उनके नजरिए की साइंसी ईमानदारी और मजबूती जाहिर होती है कि ये सबूत पर मबनी है, कयास पर नहीं। उन्होंने मुमकिना एतराजात जैसे आँख जैसे पेचीदा अज़ा का इर्तिका, उन पर भी बात की। हाँ, इस पर काफी बहस हुई थी। जी, या अनवा के दरमियान बांझपन, उन सब पर उन्होंने तफसील से बात की और बताया कि कैसे उनका नजरिया उनकी वजाहत कर सकता है। तो उनके ये इख्तितामी ख्यालात सिर्फ माजी का खुलासा नहीं थे, बल्कि वो मुस्तकबिल की बुनियाद भी रख रहे थे। बिल्कुल। आज की जदीद हयातियात उसी बुनियाद पर खड़ी है। इस किताब ने वाकई दुनिया को देखने का हमारा अंदाज बदल दिया। हाँ, ये तो है। इस आखिरी बाब में डार्विन हमें याद दिलाते हैं कि इर्तिका सिर्फ एक खुश्क हयातियाती अमल नहीं है। ये वक्त के साथ तब्दीली, जुद्दोजहद, मुवाफकत और तमाम जानदारों के दरमियान गहरे ताल्लुक की एक कहानी है। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाकई एक साइंसी किताब से बढ़कर महसूस होती है। ये फितरत में हमारे मकाम के बारे में क्या कहते हैं, गहरे फलसफियाना सवालात उठाती है। जी हाँ, मुहतात मुशाहिदा, मंतकी इस्तिदलाल और गहरी आजिजी के साथ डार्विन ने जिंदगी का एक ऐसा तस्वुर पेश किया जो बेवक्त मुतहर्रिक है, बाहम मरबूत है और मुसलसल आश्कार होता रहता है। और दिलचस्प बात यह है कि वो मुस्तकबिल की तरफ भी इशारा करते हैं, जहां वो समझते थे कि नफ्सियात जैसी शाखें भी इर्तिकाई बुनियादों पर उस्तवार होंगी। तो इस सफर में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि इस तफसीली जायजे ने न सिर्फ इर्तिका के मैकेनिज्म को समझने में मदद की होगी, बल्कि उसकी खूबसूरती और ताकत को सराहने का मौका भी फराहम किया होगा। जी, और हमें कमेंट्स में अपने ख्यालात से जरूर आगाह कीजिएगा और हमारे दीगर मुकम्मल किताबों के जायजे भी देखें, जहां हम फलसफा और साइंस को सादा और सोच समझकर लिखी गई जबान में जिंदा करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। जाते जाते एक सवाल छोड़े जाते हैं सुनने वालों के लिए। अगर डार्विन के मुताबिक जिंदगी का बुनियादी उसूल मुसलसल तब्दीली और माहौल से मुताबिकत पैदा करना है, तो क्या यही उसूल इंसानी माशरों, हमारी सकाफतों और हमारे ख्यालात पर भी लागू होता है? अच्छा सवाल है, इस पर गौर कीजिएगा।